are pleased to have today amongst us CA Yatindra Khemka ji. He is a partner in Samyank and Company, Chartered Accountants, having office at Daryaganj. He is an expert on capital market transactions, and he has been associated with various committees of the institute also regarding this capital market transactions. Earlier also, when we published our book on capital market transactions, he was kind enough to contribute an article on accounting and taxation of capital market transactions. I shared that article in group also. That was really helpful in understanding the various types of transactions. And of late, our SSCs have been receiving notices from Income Tax Department regarding the various transactions entered into with the clients, which even clients did not tell us, thinking that they have not earned any income and they have incurred only losses, and so such transactions need not be reported. Transactions run into crores of rupees, daily transactions, jobbing transactions, derivatives, futures, options, etc. Accounting is very complex, very cumbersome. If we ask for professional charges, that is also not acceptable to the client, because he says, सर मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं इसमें, मेरे को तो लॉस ही लॉस है. अब उसको ये समझ में नहीं आता भाई लॉस है या प्रॉफिट है, तो दिखाना तो पड़ेगा. तो क्या कोई वे आउट है उसका? क्या हम समराइज्ड वे में दिखा सकते हैं? हम एक ही फिगर दिखा दें स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस की? ऑडिट होगा, टैक्स ऑडिट होगा, कब होगा, कब नहीं होगा? अभी 18-19 के नोटिस आ रहे हैं, तो क्या उसका ऑडिट हम अब करें? उसने तो पहले ही रिटर्न फाइल कर दी, अभी तो हमें 30 सितंबर तक रिटर्न रिवाइज करनी है. So these are some of the issues which many members are facing. So with this in mind, we invited CA Yatindra Khemka ji to deliberate on the issue. I think members will definitely feel enlightened by the depth of deliberations, and he will be kind enough to interact with members even after the seminar through WhatsApp or email. So with this, over to Yatindra Khemka ji. We once again welcome him in our study circle. Yes, sir. Kindly start your deliberation, sir, please. Thank you, R.K. Gupta ji, Bhardwaj ji, Sunil ji, other dear friends. All screens are off and no one is visible except Gupta ji and Bhardwaj ji. हेलो सर, आप म्यूट है आप. यस सर, प्लीज. जी गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, वो कह रहे हैं. मैं यही कह रहा था जी कि वरुण नामनोली जी काफी एक्टिव मेंबर हैं हमारे, और काफी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपसे. कोई बात नहीं है सर, कुछ आपकी हेल्प लेके क्वेश्चन के सब आंसर देंगे आपसे. आज ये पेंडेमिक के बाद कैपिटल मार्केट पे बोलना, और कैपिटल मार्केट पे भी उस दिन बोलना जब 2 दिन पहले कैपिटल मार्केट अपना रंग दिखला रही है, और कैपिटल मार्केट के बारे में परसेप्शन लोगों की ये है धारणा कि सब जगह लॉकडाउन है और कैपिटल मार्केट अप ही एंड अप है, और थोड़ा सा कल करेक्शन आई, परसों करेक्शन आई. तो क्या कैपिटल मार्केट है, कैसे उसमें पैसा कमाएंगे? गुप्ता जी ने मेरे पास बहुत बड़ा चार्ट भेजा जिसमें सब तरह की ट्रांजैक्शन है, लोग इतनी ट्रांजैक्शंस करते हैं करोड़ों रुपए की. तो ये कैसे होता है? टैक्सेशन के लिए हम लोगों को टैक्सेशन की बात तो यह है कि अकाउंटिंग ही प्रॉपर नहीं होती, तो टैक्सेशन की तो बात ही अलग है, और जो मर्जी जहां मर्जी उस चीज को दिखलाने की कोशिश करता है. मेरा एक्सपीरियंस ये है, people are least bothered about the capital market transactions, its accounting, its taxation. तो जब भाई आप इतने ज्यादा पेसिमिस्टिक हैं और इतना ज्यादा रिलेट ही नहीं कर रहे, और आप अपने जो आप जिससे कमाना चाहते हैं उसके बारे में कंसर्न नहीं कर रहे, उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर कमाएंगे कैसे? जब अकाउंटिंग ही आपकी ट्रांजेक्शन्स की प्रॉपर नहीं होगी तो आपको गेन और प्रॉफिट कैसे हो रहा है, आउटस्टैंडिंग पोजीशंस है, कौन से शेयर्स ले रखे हैं, किस भाव में ले रखे हैं, कैसे आप ट्रैक रखते हैं, और कैसा उसका उसको सेल ऑफ करना है, कब उसको कैपिटल गेन आना है,
कब शॉर्ट टर्म आना है, कब लॉन्ग टर्म आना है, कब उसकी बिजनेस इनकम है, आपने क्या प्री डिसाइडेड कर रखा है और उस इंटेंशन से आप कैसे बिजनेस करते हैं, पीपल डोंट नो, neither they take care before entering into the capital market transaction. And my request to each one of you that you should guide your clients that before entering the capital market transaction, they should decide what type of transaction they are entering into, and basic fight is between cash market transaction, whether that is business income or capital gain income, especially the long term capital gain income. That fight is there actually. So, and all accounting has to be done accordingly. And I see that my friends in our fraternity also enter into the transactions which are not permissible to them, neither to them nor to their HUF, through their HUF. And even then they do that, and when they do that and F&O transaction, which is practically business in nature, they try to show that somewhere else, which is wrong. So my request to each of my friends here, that at least chartered accountants, those are in practice, should not enter into, those have COP, should not enter into derivative transaction, either it's their own or by in their HUF, of which they are the kartas. So otherwise you may face sometime the disciplinary procedure. Please take care. Whenever I talk on this capital market transaction, I always request my friends to please take care of this. So going forward, this is the whole chart relating to the capital market transaction. There is no other transaction which is out of this box, right? So there are two segments in capital market. One is derivative, another is cash market, and we all are aware of both. So I will start with the derivative transaction first. In derivative, there are two types of derivatives, right? Some other time I will describe what are the derivative. Derivative are basically the instrument which derive its value from any underlying. And here underlying may be the stock, shares itself, or their indexes. There are two types of underlying asset of any derivative. Means derivative, the derivative is an instrument which derive its value from the underlying. And underlying here with respect to this capital market is whether the actual shares of the company or the indexes, right? NSE or the BSE or Nifty Bank or Nifty Bank Nifty or IT Nifty or Auto Nifty, whatsoever. So there are derivative of those also. So, and all derivative transactions, please take care, all derivative transactions are business in nature, which is as per section 43(5)(d). 43(5) deals with the speculative transactions, but 43(5)(d) talk about the exemptions which are not speculative in nature, the transactions which are not speculative in nature, right? So under section 43(5) we deal with the speculative transactions, and there are exemptions to the A, B, C, and with respect to D, I will come to that, and that D tells that these transactions which enter into a recognized stock exchange through intermediary are not an speculative transaction, rather it is a business, pure business transactions. So all ये मैंने बात कर ली है, all क्या, how we do it when we enter into any contract. Suppose हमारे को एक रिलायंस का एक लोट खरीदना है, तो हमारे को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमारे को कुछ ब्रोकर को इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है। तो हम उस इनिशियल मार्जिन की क्या एंट्री करते हैं कि सबसे पहले तो हम इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर करते हैं, फिर ब्रोकर को जब वो चेक दे देते हैं तो हम क्या कर देते हैं, या डायरेक्ट भी कर देते हैं कि इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक,
या फिर इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर एंड ब्रोकर अकाउंट डेबिट टू चेक बैंक, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन सबसे पहले जो इनिशियल मार्जिन देते हैं वो करते हैं। मेरा सब लोगों से क्वेश्चन है कि और क्या एंट्री, जब हम कोई रिलायंस का लॉट खरीदते हैं तो हम उस लॉट को, सपोज 1000 रुपए का रिलायंस खरीदा हमने, तो उस 1000 का रिलायंस का 1000 रुपए का रिलायंस 100 शेयर का एक लॉट है सपोज, या 300 शेयर का एक लॉट है सपोज, या 200 शेयर का एक लॉट है। तो अगर 300 शेयर का एक लॉट है तो उसकी हम क्या एंट्री करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। देयर विल बी नो एंट्री फॉर परचेज ऑफ ए लॉट ऑफ दैट और सेल ऑफ ए लॉट। कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पार्ट करते हैं तो उसकी सेल या परचेज की कोई एंट्री नहीं होती है। एंट्री कब होती है? सबसे पहले तो मार्जिन क्या होगा, जब डे क्लोज हो जाएगा, जिसमें आपने जिस डे में अगर आपने किया ट्रांजेक्शन तो उसका जो नेट प्रॉफिट या गेन है उसकी एंट्री होगी, और वो सीधा प्रॉफिट एंड, क्योंकि वो क्लोज हो चुका, डिटरमाइंड हो चुका लॉस प्रॉफिट, तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइंड हो चुका उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, राइट। और जो डिटरमाइंड नहीं हुआ, अभी ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, आपने एक लॉट रिलायंस का खरीदा है खाली, और 1000 रुपए में खरीदा है रिलायंस का, अब तो 1000 कहना इररेलेवेंट हो गया, अब तो आपने सपोज 2400 रुपए में, 2300 रुपए में या 2200 रुपए में एक लॉट खरीदा है, ठीक है, 300 शेयर का, और उसमें 100 रुपए घट जाते हैं, तो आपको 100 रुपए के हिसाब से 300 शेयर पे 30,000 का नुकसान हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट लॉस, या 100 रुपए बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट गेन। और वो मार्क टू मार्केट लॉस या मार्क टू मार्केट गेन होता है, तो हम एक मार्क टू मार्केट लॉस एंड गेन अकाउंट खोलेंगे जो कि बैलेंस शीट आइटम होगी, और उस बैलेंस शीट आइटम में जो डे का उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉस और गेन होता रहेगा जब तक हम उस कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर नहीं करते, उसमें डेबिट या क्रेडिट करते रहेंगे, और ब्रोकर के अकाउंट को उसी का अकॉर्डिंग रिवर्स उसमें डेबिट या क्रेडिट करते रहेंगे, और उसके पेटे, उस लॉस या प्रॉफिट के पेटे जो भी पैसा, उसके अगेंस्ट जो भी पैसा हमको ब्रोकर को देना या लेना पड़ेगा, हम उसको ब्रोकर के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते हुए और अपने बैंक अकाउंट को रिस्पेक्टिवली डेबिट या क्रेडिट या डेबिट करते हुए उसकी एंट्री हम करेंगे। तो ये प्लीज बिल्कुल क्लियर, हर एक आप किसी भी ब्रोकर की शीट देखेंगे तो मार्क टू मार्केट आता है। अगर मार्क टू मार्केट, कई बार हम उसको मार्क टू मार्केट को हटा के करते हैं क्योंकि वो रिवर्स होता चला जाता है डेली बेसिस पे, राइट। और फिर एक मार्जिन अकाउंट खुलते हैं। जो मार्जिन होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे इनिशियल मार्जिन जो दिया है उसको हटाने के बाद या इसको इंक्लूड करने के बाद जो रिमेनिंग मार्जिन आपसे ब्रोकर रेगुलर बेसिस पे आपकी आउटस्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर लेता है वो आपसे लेता रहेगा और उसको रिवर्स करता रहेगा जैसे ही अगला दिन आएगा, और फिर नया आपका मार्जिन अगले दिन की पोजीशन के हिसाब से, अगले दिन की प्रॉफिट एंड गेन के हिसाब से आपका कैलकुलेट करेगा और फिर एंट्री करेगा। तो अगर आप डिटेल कभी भी आप देखेंगे ब्रोकर का, तो ये मार्क टू मार्केट मार्जिन और मार्क टू मार्केट लॉस और गेन दोनों तरह के आपको उसमें आपको ट्रांजेक्शंस ब्रोकर की दिखेगी, जो कि अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि एट द एंड जब आप अल्टीमेट स्क्वायर अप करेंगे प्रैक्टिकली जो वो गेन और प्रॉफिट है वही आपका एक्चुअल गेन और प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जब एक्चुअल स्क्वायर अप हुआ और जो मार्क टू मार्केट का गेन और प्रॉफिट है, मार्क टू मार्केट के गेन और प्रॉफिट को तो हम स्क्वायर कर देते हैं और बाकी को हम जो एक्चुअल गेन और प्रॉफिट है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ड्यूरिंग द ईयर जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे स्क्वायर ऑफ होके चले जाते हैं, जितनी भी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस हैं, चाहे ऑप्शंस की है चाहे फ्यूचर की है, कोई भी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस हैं जो स्क्वायर ऑफ हो रही है आइदर ऑन डेली बेसिस और ऑन सेटलमेंट बेसिस, क्योंकि सेटलमेंट बेसिस पे तो स्क्वायर अप होनी है, अभी कोई डिलीवरी का मैकेनिज्म नहीं है कि अदर देन स्क्वायरिंग ऑफ वो कोई डिलीवरी में कन्वर्ट होंगी, ऐसा अभी कोई भी मैकेनिज्म नहीं आया है। तो सारी की सारी ट्रांजेक्शंस स्क्वायर अप हो जाती है और उसका जो गेन और प्रॉफिट है
जो एक्चुअल गेन और प्रॉफिट है वो जब उस दिन का बिल आता है उस सेटलमेंट का, उस पे आपका हम अकाउंट फॉर करके प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट या क्रेडिट, डेबिट करते हैं लॉस के लिए और क्रेडिट करते हैं डेरिवेटिव गेन और लॉस और प्रॉफिट का हमारे को अकाउंट खोल देना चाहिए और उसके हिसाब से उसमें डेरिवेटिव की एंट्रियां करनी चाहिए। अब दिक्कत ये आती है कि जब हमारा ईयर एंड होता है तो हमारे कुछ ओपन कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं, तो उस ओपन कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ मार्क टू मार्केट लॉस और गेन होता है जो बैलेंस शीट आइटम है। उसके अलावा जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जितने भी गेन और लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम रहेंगे। जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट का मार्क टू मार्क गेन और लॉस है खाली उतना बैलेंस शीट आइटम के रूप में हमारे पास पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में, चाहे वो करंट एसेट में रहेगा या करंट लायबिलिटी में रहेगा, राइट। तो हमारे को इन सब चीजों को देखते हुए अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसका टैक्स ऑडिट के लिए हमारे पास टर्नओवर क्या है। जो हमारा इसकी टैक्स ऑडिट की गाइडेंस नोट है वो ये कहती है कि जो डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट वाइज, प्लीज टेक केयर, नॉट मार्क टू मार्केट से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने 2300 रुपए का फ्यूचर खरीदा है और उसको 2200 में बेच दिया तो 100 रुपए का जो नुकसान हुआ पर शेयर और 30,000 रुपए का नुकसान जो डिफरेंस का आया लॉस का, दैट इज द डिफरेंस। या हमने 200 रुपए पर करा और जो 60,000 का प्रॉफिट आ गया तो 60,000 प्लस 30,000 टोटल 90,000 की हमारे को टर्नओवर होगी। और ये कहीं लिखी नहीं जानी, ये लिखी कहीं भी नहीं जानी, ये तो आपको एक्सेल शीट पे इसको बनाना है कि आपको कंप्यूट करने के लिए कि आप टैक्स ऑडिट के लिए 1 करोड़ से ऊपर के लिए आप 5 करोड़ रुपए की जो कंडीशन है उसके लिए जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, 5 करोड़ से नीचे है तो आपके लिए वो ये क्राइटेरिया रहने वाला है कि आप उसको मार्क टू मार्क को गेन और प्रॉफिट के डिफरेंस को कॉन्ट्रैक्ट वाइज आप उसको सेटल करें, कैलकुलेट करें और उसको एड अप करें। आपको नेटिंग नहीं करनी है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट को जब प्रॉफिट एंड लॉस में दिखलाते हैं तो नेटिंग करके दिखलाना है, या राइट हैंड में गेन दिखला दे सारा और लेफ्ट हैंड में लॉस दिखला दे, वो भी एक तरीका है। तो नेटिंग ऑफ वैसे भी हो जाएगी जिससे कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट को पता भी लग जाए। इसी तरह ऑप्शंस में है प्रीमियम का आता है, ऑप्शंस में प्रीमियम है। मैं समझता हूं कि काफी लोगों को, क्योंकि आज डेरिवेटिव समझाने का टाइम नहीं है, डेरिवेटिव अपने आप में सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो वो डेरिवेटिव है। और जिसको ये समझ में आ गया, पूरे संसार में डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन से ही मैक्सिमम ट्रेड गवर्नेंस होते हैं और डेली बेसिस पे इवन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ट्रांजैक्शन ही $ट्रिलियन के अंदर है पर डे की। तो आप समझते हैं कि जरा सी फ्लक्चुएशन किसी भी चीज में आती है, चाहे कमोडिटी में, चाहे शेयर्स में, चाहे फॉरेन करेंसी में, चाहे इंटरेस्ट रेट में, सबके डेरिवेटिव है कंट्री में, वर्ल्ड में। और डेली बेसिस पे $ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन सारे डेरिवेटिव में मिला के होती है। और जितने ट्रेजरी हाउसेज हैं या हेज फंड्स हैं या फंड्स हैं, जितने भी मनी मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं या कैपिटल मार्केट, सब लोग इसमें इसका ज्ञान बहुत अच्छे से प्राप्त करते हैं और इवन उसके बाद भी काफी ऊपर नीचे का समय देखते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को हेज करते हैं और वो परफेक्टली हेज नहीं होते, और उसके बाद भी हेजिंग करने के बाद भी उनकी बैलेंस शीट्स में करोड़ों, कई 100 करोड़ के नफे या नुकसान बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं देखता हूं, क्योंकि वो परफेक्टली हेज ही नहीं हो पाते। अपने आप में ये परफेक्ट हेज करना अपनी चीज को, या एक रीजनेबल हेज करना अपनी चीज को, ये बड़ा बहुत टीडियस काम है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कैलकुलेशन वाला काम है, जो कि अल्टीमेटली मैं देखता हूं बहुत लोग नहीं कर पाते और अल्टीमेटली वो हेज करने के बाद भी लॉस की तरफ चले जाते हैं। तो जो प्रीमियम होती है, चाहे अगर आपको दो तरह से होता है इसमें कि आप या तो प्रीमियम किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको, या तो आप अगर खरीदते हैं तो आपको देनी पड़ती है प्रीमियम, और अगर आप बेचते हैं तो आपको मिल जाता है प्रॉफिट। तो आपका सपोज कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने एंटर किया
अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट मार्च में 25 मार्च को आपने अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, या 25 अप्रैल को नहीं किया, आपने 20 अप्रैल को एंटर किया मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो मार्च का लास्ट थर्सडे को जो खत्म होना है उसका कॉन्ट्रैक्ट आपने 20 मार्च को कर दिया, तो कितने दिन हो गए? 10 दिन तो इसके हो गए, और जो लास्ट डेट सपोज 25 दिन या 26 दिन या 27 दिन जो लास्ट थर्सडे पड़ेगा उसके हो गए, तो टोटल जितने दिन हो गए उससे उस प्रीमियम को डिवाइड कर लेंगे। अगर आपको वो प्रीमियम, क्योंकि अगर आपने सेल की है तो वो आपकी इनकम है, तो जितनी प्रोराटा प्रीमियम आपने बुक किया वो आपकी इनकम हो जाएगी, और जितनी प्रोराटा प्रीमियम अगर आपने खरीदी है तो दी है तो वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी। और बाकी जो भी लॉस और प्रॉफिट होगा जब तक स्क्वायर ऑफ नहीं करते वो नॉशनल लॉस और प्रॉफिट होगा, जो आपको मार्क टू मार्केट, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहेगा, जो मार्क टू मार्केट बेसिस पे आपको अकाउंट फॉर करते रहना है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में जो फ्यूचर के केस में है वो बताया, ऑप्शन के केस में भी सेम है, इक्विटी में भी हो सकता है और इंडेक्स में भी ऑप्शन हो सकता है। तो बहुत ध्यान से इसकी अकाउंटिंग करनी है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अपने लॉस और प्रॉफिट को इसके द्वारा मैनिपुलेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि जो मैंने इस समय प्रीमियम का मेरे को क्रेडिट मिल गया सारा का सारा इस साल का है, और मुझे अगर लॉस आ रहा है तो मैं उसमें एडजस्ट कर लूं, और इसी तरह अगर मैंने प्रीमियम खरीद ली और मेरे को प्रॉफिट आ रहा है तो इसमें एडजस्ट कर लूं, और जो आगे के साल है उसमें कोई प्रोराटा लेके ना जाऊं। और ये कई लाखों करोड़ों रुपए का अमाउंट हो जाता है, जो लोग करने वाले हैं वो जानते हैं। तो सेम इसी तरह से अब हम कैश मार्केट, ये डेरिवेटिव में है, डेरिवेटिव में आप अदरवाइज सारा बिजनेस के जितने भी और रिलेटेड खर्चे हैं आप उसमें डाल सकते हैं। तो और बिजनेस के अंदर में टैक्सेशन भी थोड़ा सा कवर कर लेता हूं। डेरिवेटिव के अंदर आप 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं, परंतु 44AD का बेनिफिट लेते हुए टर्नओवर क्या लेंगे, और 8% या 6%, क्योंकि यहाँ तो चेक से ट्रांजेक्शन है, सारी 6% हो सकती है, तो उसका कैसे बेनिफिट लेंगे ये आपको थोड़ा सा, मेरा तो मानना यह है कि जो नेट रिसीट है 6% उस नेट रिसीट पे लेंगे, और जो टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर कैलकुलेट करनी है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना ये है, हो सकता है डिफरेंट व्यू हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो 44AD वो जो जिस टर्नओवर की बात करता है वो रिसीट की बात करता है, एक्चुअल जो रिसीट आई है हमारे को, राइट। अब डेली जॉबिंग ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग, प्रैक्टिकली ऑल डेली जॉबिंग ट्रांजेक्शन आर स्पेकुलेटिव इन नेचर। उसमें कोई, चाहे आपने एक की है या नंबर ऑफ सीरीज की है, ऑल डेली जॉबिंग ट्रांजेक्शंस आर स्पेकुलेटिव इन नेचर। डेली जॉबिंग का मतलब है जो कैश मार्केट के अंदर आप 100 रिलायंस या 50 रिलायंस या 10 रिलायंस ले लिए और बेच दिए या ले लिए। परंतु अगर आप ये शो कर पाते हैं कि मेरे पास 100 रिलायंस हैं और मैंने सुबह ओपन में ये आज 50 रिलायंस इसमें बेच दिए, क्योंकि रिलायंस 200 रुपए नीचे आ गया या 50 रुपए नीचे आ गया तो वो मैंने कवर किया है। लेकिन जब बेचा था तो मेरी इंटेंट उसको कवर करने की नहीं थी, परंतु वो आपको इंटेंट बतानी पड़ेगी, आपको शो करना पड़ेगा। इसी तरह से डेरिवेटिव में भी हो सकता है कि डेरिवेटिव में अगर आपके पास 1000 रिलायंस हैं और आप उसका फ्यूचर बेच देते हैं जो क्लॉज ABC में कवर होगा ऊपर 43.5ABC में, तो अगर वहां पर उसका फ्यूचर बेच देते हैं और उसको हेज बना देते हैं तो वो हेज ट्रांजेक्शन भी अदर देन ABC में कवर हो जाएगी, लेकिन उसकी आपको पूरी वर्किंग रखनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, उसको स्पेकुलेटिव नेचर से बचाने के लिए आपको बताना पड़ेगा, और उसकी हेज अकाउंटिंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। सेम इसमें भी है कि आपको उसकी हेज अकाउंटिंग और जो भी ट्रांजेक्शन है उसको ये बताना पड़ेगा कि मेरे डीमैट में 100 शेयर पड़े थे, उसके अगेंस्ट बेचा, लेकिन क्योंकि भाव नीचे आ गया मैंने कवर कर लिया, इट इज नॉट स्पेकुलेटिव। परंतु मैं फिर भी कहता हूं सेफर साइड में और इस तरह की ट्रांजेक्शन को स्पेकुलेटिव मान लेना चाहिए,
उसमें कोई हर्ज नहीं है, लफड़ेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी डिस्प्यूट के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। इसकी सारी अकाउंटिंग बिल डेट पे करनी चाहिए, जब सेटल्ड हो जाता है, एक्चुअली उसका लेन देन जब सेटल हो जाता है, जिस दिन सेटलमेंट डे होता है स्टॉक एक्सचेंज का, उस दिन का बिल डेट होता है, राइट। और एसटीटी चाहे डेरिवेटिव का हो चाहे जॉबिंग का हो, हमारे को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डेबिट करना है सेपरेटली। बाकी ब्रोकरेज और चीजें हम नेटिंग कर सकते हैं, जीएसटी वीएसटी, परंतु एसटीटी को हमारे को सेपरेट शो करना चाहिए एज एन एक्सपेंडिचर। उसकी डिटेल 10 DB में आपको मिल जाती है। ब्रोकर भी जब आप उससे स्टेटमेंट मांगते हैं तो वो डिटेल बना के आपको डिटेलिंग देता है उसकी। अब सीधा आ जाते हैं कि डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शंस। अब डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन, सारा झगड़ा जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वैसे तो झगड़ा बहुत है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार लोगों ने प्रॉफिट एंड गेन्स लिए जो भी है डेरिवेटिव में, फ्यूचर्स में, और उसके बड़े बड़े नोटिस आए हैं और अभी भी पीछे सालों के आ रहे हैं। वो एक्चुअल है नहीं है, उन्होंने किया या नहीं किया, ब्रोकर ने क्या कहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है ट्रांजेक्शन को, नहीं कर रहा है ट्रांजेक्शन को, वो बहुत सारे इशू है। उसके देखने के बाद ही केस, और कई बार ये होता है कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस तो कर लिया डेरिवेटिव का और मैंने 10 DB देखा ही नहीं, और मैंने कहा इसको छोड़ो यार, इसको कहीं शो ही नहीं करते, नोटिस आ जाएगा भाई, चाहे लॉस भी आपका, आप उसका कोई बेनिफिट भी नहीं ले रहे हो, कहेगा बताओ मुझे क्या हुआ, आपने इतना एसटीटी पे कर दिया, उसके पास एसटीटी की डिटेल है, उसके पास करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन का अमाउंट आ रहा है। और जहां तक डेरिवेटिव की बात है या फ्यूचर की बात है, दो तरह की वो आती है उसमें। जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें 10 DB में 5 कोड होते हैं, 1 2 3 4 5। पहले कोड में डिलीवरी बेस्ड परचेज आती है, दूसरे केस में डिलीवरी बेस्ड सेल आती है, तीसरे केस में आपके पास जॉबिंग ट्रांजेक्शन्स आती है जो ये मैंने अभी बताई है, चौथे केस में आपको सेल ऑफ ऑप्शंस आता है, पांचवें केस में सेल ऑफ फ्यूचर आता है। परचेज की सेल में, और इसी तरह जॉबिंग में भी सेल आती है डिलीवरी की, राइट। तो 3 केस में खाली, 4 केस में सेल फिगर आ रही है और सबसे ऊपर खाली डिलीवरी की परचेज आ रही है। तो जो सेल की फिगर है वो डिपार्टमेंट के पास पूरी इंटैक्ट है, और मेरे को लगता है आने वाले समय में, क्योंकि अब ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो रही है और इंटेलिजेंस से काम हो रहा है, तो आईटी इंटेलिजेंस लग रहा है अब, तो मुझे लगता है सारी ही डिटेल ब्रोकर के अकाउंट से इनके पास लिंक्ड हो जाएंगी, और हो सकता है आने वाले समय में 10 DB को भी ये और बेटर कर ले, क्योंकि जितनी सेल की ट्रांजेक्शन है वो सारी स्क्वायर अप होनी है मैक्सिमम, जो अदर देन जो लास्ट में ओपन ना रह गई हो। तो मोटे तौर पे मतलब डिपार्टमेंट के पास सारा डेटा है आपका, आप उसको छुपाने की कोई कोशिश ना करें। कोई एडजस्टमेंट कोई करनी है और कोई खर्चा डालना है और कोई खर्चे की बात करनी है, वो उन फिगर को ना टच करते हुए, जो जिसको, क्योंकि डेरिवेटिव बिजनेस है, जॉबिंग स्पेकुलेटिव है, खाली आपको डिलीवरी बेस में डिसाइड करना है कि ये कैपिटल गेन है या बिजनेस इनकम है, आपके पास बस वही ऑप्शन है और कहीं ऑप्शन नहीं है इसमें, और झगड़ा वहां पर भी बहुत बड़ा है। तो अब इंटेंट, आपने डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स को अगर बिजनेस इनकम मानते हैं, तो मेरा ये कहना है कि उसकी परचेज और सेल अकाउंट प्रॉपरली क्रिएट करें, उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ना डालें, उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट ना बना दें। सर इन्वेस्टमेंट बना दे तो इंटेंट क्या हो गई आपकी, क्योंकि एक सर्कुलर है 2007 का, वो कह रहा है इंटेंट, तो इंटेंट आपकी क्या है, एंट्री शुड बी मेल ऑन बिड डेट, और एसटीटी को डेबिट और क्रेडिट करना है, अगर बिजनेस इनकम बिजनेस दिखला रखा है तो एसटीटी को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना है। जो इसकी इन्वेंट्री है, जो क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा व्हेन यू आर डीलिंग विद द ट्रीटिंग देम बिजनेस, तो स्टॉक इन ट्रेड रहेगा,
तो उसमें जो AS2 की एक्सेप्शंस हैं कि AS2 की कहाँ एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो उसमें आ जाएगा इन्वेंट्री फॉर शेयर डिबेंचर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो उस पे AS2 नहीं लगता। जब AS2 नहीं लगता तो क्या लगता है फिर हमारे को करना क्या है? या तो फिर दो ही ऑप्शन है, या तो हम कॉस्ट पे दिखला दें और जो लॉस है, जिन जिन चीजों में लॉस है उसको प्रोवाइड मोर कर दें, राइट। ये तो प्रूडेंस हो गया AS1 के हिसाब से, जो एक राइट अकाउंटिंग। या फिर सेकंड ऑप्शन फिर भी अवेलेबल है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, स्क्रिप्ट वाइज ले सकते हैं, ब्लॉक वाइज ले सकते हैं, जैसे भी आपकी एक स्क्रिप्ट वाइज भी अलग अलग आप ले सकते हैं। मेरा मानना है एक ही मेथड अडॉप्ट करें तो बेटर है। तो अगर आप फीफो करते हैं या लीफो कर या वेटेड एवरेज करते हैं और उसके बेस पे कॉस्ट डिसाइड करते हैं, और कॉस्ट डिसाइड करने के बाद उस कॉस्ट को कंपेयर करते हैं मार्केट प्राइस जो आपका 31 मार्च का है, और उसके हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी द राइट मेथड एंड प्रूडेंट मेथड एज पर AS1 ऑल्सो, इवन दो AS2 इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। तो मेरी एडवाइस यही है कि आपको उसी हिसाब से अपनी इसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर करना चाहिए। और मैंने अभी, मेरे पास कुछ लोग आए, उनकी इन्वेंट्री कई लोगों की कई लाख रुपए 31 मार्च की इन्वेंट्री में से उड़े हुए हैं, कई लाख, कईयों के करोड़ भी उड़े हुए हैं, जिसका बड़ा अमाउंट था। मतलब 25-50 लाख रुपए, 50 लाख 1 करोड़ तक की इन्वेंट्री में उड़ गए हैं, उससे भी ज्यादा उड़ गए हैं। जब तक डिविडेंड का राइट हमारे को, जब राइट कब होता है, जब हमारे को वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको पास करके AGM में पास होके जाए, AGM से पास होना है और बैंक में ना चला जाए और चेक इशू ना हो जाए, तब तक वो राइट नहीं मिलता। तो राइट टू सी पेमेंट इज एस्टेब्लिश, तब तक हमारे को उस डिविडेंड का अकाउंट फॉर नहीं करना चाहिए। अब डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन एज इन्वेस्टमेंट, जितना भी डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन जब हम इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये जब भी जो डीमेट अकाउंट है तो वो हमारा फीफो मेथड से गवर्न होता है जब इन्वेस्टमेंट मांग लेते हैं, राइट। और फीफो मेथड का मतलब है जो चीज अगर हमने सपोज रिलायंस पहले हमने या और कोई स्क्रिप्ट पहले हमने 2000 में खरीदी, नीचे आ गया, फिर 1800 में खरीदी, और फिर नीचे आ गया 1600 में खरीदी, और जब ऊपर गया तो 1700 में बेच दी, तो हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया उसमें। जो सबसे पहले 2000 में खरीदी, प्रैक्टिकली हमने उसका 300 रुपए का लॉस बुक कर दिया। तो आपको इसको ध्यान रखना है जब भी आप इसको अपने ट्रांजेक्शन्स को लॉस और प्रॉफिट बुक करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। ये सर्कुलर नंबर 768 है, वो इसी बात को पूरे ढंग से विद एग्जांपल नरेट करता है आपको। और जो भी आदमी अच्छे बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, मैं कहूंगा जरूर इस सर्कुलर को, मैं बार बार कहता हूं, इस सर्कुलर को जरूर पढ़ना चाहिए। और कई बार हो सकता है कि आपको लगे कि आप एक नहीं 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं, और ये हर अकाउंट को सेपरेटली ट्रीट करेगा। उसका फीफो आपके लेजर का फीफो नहीं, आपके स्टॉक लेजर का फीफो नहीं, फीफो पर अकाउंट वाइज चलेगा। अगर आपने 2000 रुपए का रिलायंस पहले खरीदा एक अकाउंट में, और दूसरे डीमेट अकाउंट में आपने 1600 का खरीद लिया, और वो बाद में 1750 का बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट काउंट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी आएगा, राइट। तो ये डीमेट वाइज है, प्लीज टेक केयर। ये डीमेट वाइज आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करेगा। अब समस्या ये है कि लोगों के पास आज भी फिजिकल शेयर पड़े हुए हैं। मैंने एक अकाउंट, ये मैंने रिलायंस खरीदे 2000 रुपए के अभी जनवरी में, और मेरे पास 4 साल पहले वाले रिलायंस थे, वो मैंने डीमेट करवाए जो फिजिकल पड़े हुए थे फरवरी फर्स्ट वीक में, राइट। और
फिर मैंने दूसरे एक और अकाउंट खोला, उसमें नया रिलायंस खरीद लिया मार्च फर्स्ट वीक में। अब मुझे पहले अकाउंट से अगर मैं बेचता हूं रिलायंस को, तो और मैंने जो जनवरी में खरीदा है, तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो होना है वो जनवरी में जो मेरे पास डीमैट में शेयर है, ये माना जाएगा कि वो ही फर्स्ट आउट हुआ है, राइट, ना कि जो फिजिकल शेयर मैंने फर्स्ट इन के बाद जो फिजिकल शेयर थे उसको डीमैट में कन्वर्ट करवाया। तो इस चीज का बड़े ध्यान से आपको अपनी कैलकुलेशन करते हुए ये सब गलतियां हो जाती हैं, और लगातार हो रही है, मैं देख रहा हूं, और वो कैलकुलेशन गलत हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का झंझट पड़ जाता है और टैक्स की लायबिलिटी आके खड़ी हो जाती है। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें और अच्छे से इस चीज को पढ़ें। ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट को गवर्न करेगा AS 13, और कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखते हैं कि वो शॉर्ट टर्म इन नेचर, अगर आपको लगता है कि आपका लॉस हो रहा है, तो आपको उसको प्रोवाइड फॉर कर देना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में से। और अगर आपको लगता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें से परमानेंट इन नेचर के लॉस हो गए, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है, या अभी आपको DHFL जैसा शेयर है जो आपने 400 रुपए में खरीदा है और आपको लगता है अभी नियर फ्यूचर में ये 400 रुपए नहीं जा सकता और ये परमानेंट नेचर का लॉस है, तो उसको आपको रिड्यूस करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में से, राइट। उसके गेन और प्रॉफिट की कहीं कोई बात एज सच उसने नहीं बताई कि गेन आएगा लॉस आएगा, परंतु उसकी कॉस्ट को जरूर आपको रिड्यूस करके और उसके लॉस और प्रॉफिट को लेना है। परंतु वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा या नहीं होगा, बहुत ज्यादा केस लॉस कोई उसके फेवर या अगेंस्ट में है नहीं अभी तक, राइट। यस, क्योंकि AS 13 टैक्सेशन को कवर नहीं करता एक्चुअली, और टैक्सेशन में कहीं भी उसकी परमानेंट नेचर या टेम्परेरी नेचर से उसके लॉस प्रॉफिट को गवर्न नहीं किया गया। अकाउंटिंग फॉर राइट एंड बोनस, बोनस में तो कोई सिंपल है, उसकी कॉस्ट कुछ होती नहीं है, राइट में जो कॉस्ट दे दी है उसकी एवरेज आउट करेंगे, और जिस दिन राइट का शेयर आया उसकी होल्डिंग वहीं से लगेगी। मेरा मानना है उसकी होल्डिंग वहां से ना लग के, जब से उसने, क्योंकि वो राइट है मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, वहां से लगेगी। दोनों व्यू है, अभी उसमें भी झगड़ा है कि होल्डिंग पीरियड क्या होगा, परंतु जब हो तब उसको डिसाइड कर लेंगे क्या व्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। दोनों व्यू भी ले सकते हैं कि मैं मानता हूं, क्योंकि पर से मेरी डाइल्यूशन जो राइट के बाद होती है वो मेरे वैल्यू में जो मेरा ओरिजिनल शेयर है उससे होती है, तो मेरी होल्डिंग भी वहीं से माननी चाहिए। ये अब आपके सिग्निफिकेंस ऑफ अमाउंट क्या सिग्निफिकेंस और उसकी टैक्सेबिलिटी कितनी आ रही है और आप कितना रिस्क लेना चाहता है आपका क्लाइंट, उसके ऊपर आपका ये केस डिसाइड करेगा। परंतु ये है बहुत बड़ा एरिया जो डिसीजन मेकिंग का। टैक्सेशन मैंने बता दिया, इसमें 2-3 चीजें और मैं बता दूंगा साथ में। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसमें CTT लगता है वो भी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी है जो कि CTT नहीं लगता वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और जो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाती है वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाती है, और उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो स्पेकुलेटिव इन नेचर। अभी भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन है जिसपे CTT नहीं लगता, जो स्पेकुलेटिव इन नेचर है। अगर उसकी स्पेकुलेटिव इन नेचर ट्रांजैक्शन है तो उसका प्रॉफिट से हम कैपिटल मार्केट के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, जो स्पेकुलेटिव नेचर है या स्पेकुलेटिव ऑफ नेचर नहीं है कमोडिटी मार्केट में। लेकिन उल्टा नहीं कर सकते, हमारा लॉस है और स्पेकुलेटिव लॉस है, या जॉबिंग में भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन जो है डिलीवरी बेस्ड सेगमेंट में, उसमें स्पेकुलेटिव अगर लॉस है तो उसको यूजुअल बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये मैंने पूरा आपको टेक्स्ट दे दिया है, मेरे ख्याल स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा गुप्ता जी के साथ। ये पढ़ेंगे तो काफी आपको
जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर चाहिएंगे, तो ये काफी आपको आगे के समय के लिए भी काफी ठीक रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। बढ़िया सर, थैंक यू। क्योंकि अब ये सबके साथ शेयर हो जाएगी ना, बहुत अच्छा रहेगा सर। हाँ, मैं दे दूंगा, और इसमें टाइमली एक अभी तो इमीडिएटली दे दूंगा, और इसमें कुछ और इंटर ट्रांजेक्शन वगैरह भी कभी अमेंड करने का जब समय मिलेगा वो करके भी फिर आपको फर्दर दे दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी, थैंक यू। इसमें भी 44 AB का ये मैंने इश्यू बता दिया आपको। पॉजिटिव ध्यान रखें जब भी टर्नओवर के एक्सेल शीट पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज बनाना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको गेन और प्रॉफिट निकालना है। कॉन्ट्रैक्ट वाइज का मतलब है आपने 300 रिलायंस का अगर लोट ले, 5 लोट रिलायंस के लिए एक साथ में, तो 100 लोट बेचे तो 5 लोट का लॉस प्रॉफिट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक ही में कवर हो जाएगा वो। और अगर आपने 100 का अलग अलग कर रहे हैं तो वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट। 5 एक बार ले रहे हैं चाहे अलग अलग स्क्वायर के हैं, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के बनिस्पत आप स्क्वायर अप कर रहे हैं। प्लीज उस हिसाब से इसको टेक केयर करें। इंटरेस्ट वगैरह की जो भी, अगर आप लोन लेके कोई पैसा लगाते हैं, जब बिजनेस इनकम बिजनेस कर रहे हैं या डेरिवेटिव कर रहे हैं या जॉबिंग कर रहे हैं, तो उससे जो भी इंटरेस्ट है वो आपको इंटरेस्ट के अमाउंट में छूट मिल जाएगी। कई बार वो रहता है। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल एंड केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल, केवल एंड केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट अप होगा। प्लीज टेक केयर। अब वो टैक्सेबिलिटी वाला, क्योंकि टैक्सेबिलिटी आ गई तो वो झगड़ा खत्म हो गया कि ये जो नॉन एग्जम्प्टेड वाला है उसका क्या होगा। अब वो एग्जम्प्टेड तो कुछ रहा नहीं है, तो मेरे ख्याल वो पक्का खत्म हो गया। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो एडजस्ट होगा। और शॉर्ट लॉस जो है वो कोई भी गेन से, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों से हो जाएगा। और कोई भी बिजनेस लॉस, प्लीज कोई भी बिजनेस लॉस आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। भारद्वाज जी, आपकी आवाज आ रही है क्या? किसकी आ रही है आवाज? तो जब आपको अपनी प्लानिंग करनी है, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस करने हैं अपने, तो मैंने एक छोटा सा चार्ट भी इसमें दिया है, तो आप इसकी भी सहायता ले सकते हैं। और कई बार इसमें बहुत मिसकंसेप्शंस रहते हैं और वो गलत सही हो जाता है, तो प्लीज टेक केयर करें। और सही तरह से, कई बार हम बेनिफिट ही लेना छोड़ देते हैं, हम प्रॉपरली सेट ऑफ ही नहीं कर पाते चीजों को, तो उसको प्रॉपरली सेट ऑफ करके और उसका बेनिफिट भी लें। कई बार हम कैरी फॉरवर्ड प्रॉपरली नहीं कर पाते, क्योंकि शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन में एक साल में बहुत, मार्च में बहुत लॉस है और अभी मार्च के बाद बहुत प्रॉफिट है। अगर हमने लॉस को ढंग से सेट ऑफ नहीं किया, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, तो वो अगले साल सेट ऑफ नहीं होंगे, अगले साल टैक्सेशन लग जाएगा, बड़ा झगड़ा है वो। तो कई बार क्लाइंट जिस बार लॉस हो जाता है आपके पास आता ही नहीं रिटर्न भरवाने, उसके अगले साल लॉस प्रॉफिट हो जाएगा, फिर कहेगा मेरे को क्या करना है, वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो टाइमली रिटर्न नहीं जाएगी, वो एलिजिबल नहीं होगा आपका लॉस। तो ये बड़ा झगड़ा है। ये सारा मैंने बताया आपको, मैंने वैसे भी बता दिया ब्रीफिंग करके आपको। इसी तरह डेली जॉबिंग ट्रांजेक्शन्स का भी जब टैक्स ऑडिट का पंगा पड़ेगा, उसमें भी जो डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाइज है, राइट। अगर मैंने 50 रिलायंस लिए और 50 बेचे, फिर 50 लिए फिर 50 बेचे, फिर 200 लिए फिर 200 बेचे, तो वो ईच कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका हर एक का हमने एक्सेल शीट में नेगेटिव या पॉजिटिव लेना है, और चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों को पॉजिटिव मान के ऐड ऑन करना है। तो
ये हमारे को एक्सेल सीटी कॉन्ट्रैक्ट वाइज बताएगी हमारे को। स्पेकुलेटिव का 43.5 का देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट परचेज और सेल इज एनी कॉन्ट्रैक्ट इज periodical और सेटल्ड, द सेटलमेंट इज अदरवाइज देन डिलीवरी। जो डिलीवरी के बिना सेटल्ड हो रही है वो स्पेकुलेटिव है बेसिकली, परंतु एक्सेप्शन है उसके ये यहाँ पर जो पीछे मैंने 43.5 में यहाँ पर दिए आपको, यहाँ पर ये स्टार्टिंग में दिए मैंने ये सारे एक्सेप्शन है। ए कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्चेंडाइज एंटर्ड इनटू बाय ए पर्सन इन द मैन्युफैक्चरिंग मर्चेंडाइज टू guard the loss through future price fluctuation in respect of contract for actual delivery। ठीक है, इसी तरह ये ए बी सी बी में भी आपकी ट्रांजेक्शन अगर फॉल करती है तो 43.5 के बना से बाहर आ जाएंगे और आपको वो बिजनेस नेचर का हो जाएगा स्पेकुलेटिव की जगह। तो आप उसका बेनिफिट ए बी सी खाली डी ना देखें, ए बी सी भी अगर आप दे सकते हैं अगर आपको स्पेकुलेटिव नेचर नहीं प्रूव मतलब से बाहर आना है तो ट्रांजेक्शन में। इन्वेस्टमेंट में जो आप एसटीटी पे करते हैं उसको भी डेबिट करना है। इन्वेस्टमेंट के केस में भी उसको ना तो पार्ट ऑफ द कॉस्ट बनाना है परचेज के टाइम और ना ही सेल के टाइम उसको अपनी कंसिडरेशन में से लेस करना जो आपको पैसा मिल रहा है, राइट। तो उसको सेपरेटली शो करना है और सेपरेटली शो करके वो बिजनेस एक्सपेंडिचर की लिए या आपकी कॉस्ट की तरह आपको डिडक्शन नहीं मिलनी। तो आप उसको प्रैक्टिकली अपनी ड्राइंग मान लें और उसको ड्राइंग की तरह ट्रीट करें या डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करें उसे। वो एसटीटी का एक्सपेंडिचर इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। बाकी सभी केसेस में चाहे स्पेकुलेटिव इन नेचर है या नॉन स्पेकुलेटिव इन नेचर है, चाहे जॉबिंग है या डिलीवरी बेस है, जहां बिजनेस मान रहे हैं उसे उस केस में एसटीटी एज एन एक्सपेंडिचर आपको अलाउड है। ये एक्सप्लेनेशन 73 इसमें भी बहुत दिक्कत रहती है और इसमें लोग गलतियां करते हैं और फिर नोटिस आते हैं। कोई भी कंपनी जो इस ब्रैकेट में फॉल नहीं कर रही, एक सेकंड में इसको, जो इस ब्रैकेट में फॉल नहीं कर रही वो सारी की सारी जो मतलब कंपनियां है जो सिक्योरिटी में जिसकी इनकम बिजनेस की नहीं है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, और कंपनी जो बिजनेस ट्रेडिंग और बैंकिंग में है, ग्रांटिंग लोन उसमें है, परचेज एंड सेल में है, अगर ये कंपनी नहीं है और बाकी कोई भी कंपनी सेल और परचेज ऑफ शेयर in the where any part of the business of the company, any part of the business of the company is sale and purchase, यहाँ पर वर्ड आया सेल ऑफ शेयर्स एंड परचेज ऑफ शेयर, तो प्लीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी, वो यहाँ सेक्शन 73 में फॉल नहीं करेगी अगर वो बिजनेस ऑफ ए कंपनी सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी सेल एंड परचेज नहीं है। और कौन सी कंपनी जो इस ब्रैकेट में फॉल नहीं कर रही, तो अगर इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंपनी की तो वो इन्वेस्टमेंट है, काम खत्म, उसका कैपिटल गेन होगा। अगर बिजनेस है और वो ये कंपनी ब्रैकेट में नहीं है तो उसका कोई भी पार्ट जो सेल एंड परचेज का है दैट विल बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव। सारा नहीं, अगर आप सोने चांदी का भी काम कर रहे हैं या आप कपड़े का भी काम कर रहे हैं या ग्रेन मर्चेंट भी हैं और आप उसमें शेयर परचेज का भी शेयर परचेज का भी काम करते हैं, तो विद रिगार्ड टू सेल of shares and sale and purchase of shares, that part of the profit and loss shall be only speculative in nature if that is the company. Please take care. ये कई बार हो गया है।
ये सर्कुलर आते हैं। अब ये सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 4 2007 में, डेटेड 15 जुलाई। उसमें कहा कि भाई ये झगड़ा ये है, आज तक भी झगड़ा है, अभी भी झगड़ा है, कि ये जो मैं डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मैं तो बिजनेस मान रहा हूं। जब मैं बिजनेस मानता हूं, वो कहता है आप इन्वेस्टमेंट मान रहे हो, आपका शॉर्ट टर्म है, आप 15% में आओगे, आपका लगेगा ही लगेगा। आप तो ये 5 लाख तक का आपका ये गेन है, आपने 5% में छूट गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आप नहीं आओगे। परंतु अभी शॉर्ट टर्म के जो है उसके बाद ये 2016 में आया ना बिजनेस का, वो कह रहा है शॉर्ट टर्म है तो है, लॉन्ग टर्म अगर आपने एक बार दिखला दिया 12 महीने के लिए किसी चीज को और आप उसको वैसे ही ट्रीट करते जा रहे हो, तो आपको उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। फिर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते और बिजनेस नहीं मान सकते अपनी स्वीट विल के हिसाब से, राइट। तो फिर आपका वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। परंतु फिर भी झगड़ा रहता है कि बहुत सारे लोग कुछ पार्ट को लॉन्ग टर्म मानते हैं, कुछ पार्ट को बिजनेस मानते हैं, और कुछ पार्ट को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, उसमें कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म हो जाता है, कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म हो जाता है। तो ये झगड़ा फिर भी है, फिर भी एक गवर्निंग आपका है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कह रहा है अकाउंटिंग एंड इंटेंशन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैं, उनकी इंटेंशन और अकाउंटिंग दोनों ही, उनकी इंटेंशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का केस आए तो सबसे पहले ये है कि भाई हमारा कोड ऑफ कंडक्ट ही अलाउ नहीं करता हमारे को बिजनेस करने के लिए, तो हमारी तो सारी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो भी लॉस और प्रॉफिट आ रहा है हम देने के लिए तैयार। फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम, अब फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम, कई बार वॉल्यूम है, मैंने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक ही बार में एक कंपनी में कर दी और मैंने लॉन्ग टर्म के लिए की है, काम खत्म हो गया, और मैं 50 लाख का अमाउंट लगा के उसको बार बार रोटेट कर रहा हूं। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस, और कैसे आप केस को अपने प्रेजेंट करते हैं और बनाते हैं, और क्या उसकी हिस्टोरिकल डाटा देते हैं, और कैसे फ्यूचर डाटा देते हैं, और कैसे इंटेंट बताते हैं, और कैसे अकाउंटिंग बताते हैं। आपने अगर 2 साल से 3 साल से स्टॉक इन ट्रेड दिखलाए जा रहे हैं, तो वो ये नहीं कह सकता ये बिजनेस नहीं है। या आप लगातार इन्वेस्टमेंट दिखलाए जा रहे हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं जब आपने सेल करी, तो फिर वो बड़ा मुश्किल है उसको बताना, भाई 4 साल के रिटर्न में मैंने इन्वेस्टमेंट दिखलाई है अपनी बैलेंस शीट में, तो हाउ यू कैन स्टॉप मी नाउ। अब ये जो मैंने कहा मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट वर्सेस एक्चुअल हॉलो क्लार्सन का ये केस है, बॉम्बे CIT बॉम्बे का, और अभी भी लॉट ऑफ लिटिगेशन है। परंतु CBDT ने जो सर्कुलर 6 2016 में ये उससे थोड़ा और रिड्यूस हुआ है उससे, फिर भी है। अगर डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस दिखलाते हैं, तो जो सेल साइड है नेट, हम मानेंगे उसको अपनी टर्नओवर और 8 या 6% का रूल, या जो 5 करोड़ वाला रूल अभी आया है इस साल के लिए, उसके हिसाब से इसको हम सेट करेंगे और उसके हिसाब से इसका टैक्स ऑडिट करेंगे। और मेरा यह मानना है बहुत क्लियर कट कि इस केस में, क्योंकि अभी तक इसमें कोई इशू नहीं आया है, तो इस केस में मेरे हिसाब से 44 AD का बेनिफिट हम ले सकते हैं। ये जो रेट है ना STT के, ये गलत हो सकते हैं, इसमें मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं किए, पुराने भी हो सकते हैं, तो इसको मेरे को एक्सक्यूज करना प्लीज। बाकी तो काफी चीजें मैंने लेटेस्ट की है उसे। और डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स में मैंने आप पहले ही बता दिया कि आपको S2 नॉट एप्लीकेबल, परंतु वैल्यूएशन के लिए आपको प्रूडेंस आपको करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट, जहां डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स हैं और बिजनेस है, वहां फीफो की जरूरत नहीं है, बहुत सारों का है, वहां फीफो की जरूरत नहीं। जो सर्कुलर है खाली तब लगता है जब हम खाली इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते, जो सर्कुलर है 768, वो तब लगेगा जब हम खाली इन्वेस्टमेंट उसको ट्रेड करते हैं, तब इन्वेस्टमेंट के केस में फीफो माना जाएगा। डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन में कोर्ट हम डिटरमाइन फीफो या वेटेड एवरेज दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और वो फिर फीफो है ना डीमेट अकाउंट वाइज नहीं होगा, वो ओवरऑल होगा, प्लीज माइंड इट। बिजनेस के केस में ओवरऑल फीफो और वेटेड एवरेज होगा,
वो अकाउंट वाइज नहीं होगा। जो वो अकाउंट वाइज की बात कर रहा है वो खाली इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहा है। नॉर्मल डिविडेंड है, बहुत सारी कंपनियों ने तो इस बार मार्च में डिविडेंड दे दिया, और ड्यू डिविडेंड है, इंट्रीम डिविडेंड है। तो इंट्रीम डिविडेंड जब टैक्सेबल होगा व्हेन इट इज अवेलेबल टू द एसएससी, अवेलेबल बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर, एसएससी मींस शेयर होल्डर। और कब माना जाता है? जब वो पैसा बैंक में जमा हो गया एस्क्रो अकाउंट में और उसके चेक भी कट गए, खाली जमा ही नहीं हो गया, उसके चेक भी कट गए। चेक जब कट के इश्यू हो गए हैं वारंट, या जब ईसीएस चली गई है, देन ऑन दैट डेट, ईसीएस पहुंची है या नहीं पहुंची है, नहीं, on that date of issue of check, delivery of check is the date when it is made available by the company to the shareholder. अब ये डिविडेंड इनकम तो सब जगह टैक्सेबल हो गई फुल्ली। अब कुछ जगह थोड़ा बहुत जो रहा है, कुछ ज्यादा झगड़ा रहा नहीं है, कहीं कहीं डीम डिविडेंड वगैरह में सेक्शन 115 वो लगेगा कहीं कहीं, तो बहुत ज्यादा उससे कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन से बहुत ज्यादा कोई इसमें इश्यू नहीं आएगा। ये मैंने फिर भी एलोबरेट कर दिया है आपको, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इसमें पढ़ सकते हैं। डिविडेंड स्ट्रिपिंग, जब कोई भी शेयर, अब ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग भी कितना रेलिवेंट रह गया है, क्योंकि फिर भी है, क्योंकि अब वो तो टैक्सेबल है। इसमें डिविडेंड स्ट्रिपिंग में क्या है कि 3 महीने का, अगर आपने 3 महीने पहले कोई शेयर लिया और उसमें डिविडेंड आ गया, तो फ्रॉम द डेट ऑफ सच सिक्योरिटी 3 महीने के अंदर, सच विद इन पीरियड ऑफ 9 मंथ अगर आप बेच देते हैं, तो फिर वो कैपिटल लॉस आपका लॉस नहीं माना जाता। अप टू द अमाउंट जो आपने डिविडेंड रिसीव किया है। पहले इसमें बड़ा गेम चलता था, ये म्यूचुअल फंड वगैरह में अभी भी चल जाता है कई बार, तो उसको टेक केयर करने के लिए डिविडेंड स्ट्रिपिंग और ये बोनस स्ट्रिपिंग दोनों ही आई है, राइट। यूनिट के केस में और सिक्योरिटी के केस में उसमें 3 महीने हैं सिक्योरिटी के केस में, और यूनिट के केस में 9 मंथ है। तो प्लीज इसका टेक केयर करें जब भी आप इस तरह की चीजें जब कैलकुलेशन करते हैं ना। आपको करना नहीं, आपको तो अपने क्लाइंट के लिए करना है, या आपको प्लानिंग करनी है। तो जब भी क्लाइंट के लिए आप कैलकुलेशन करें, तो ये बोनस स्ट्रिपिंग और डिविडेंड स्ट्रिपिंग का ध्यान रखें। जब आपकी एक्चुअल राइट उसमें ट्रांसफर होते हैं, तो राइट कब होते हैं? जब आपके डीमैट में, जब आप उसकी सेटलमेंट के लिए इश्यू कर देते हैं अपनी स्लिप, या ऑटो सेटलमेंट है तो उसमें से जब शेयर निकल जाते हैं, और जब वो जिस डेट का आपको बिल आता है, जो सेटलमेंट डेट है वहां पर एक्सचेंज की, उस दिन आपके राइट्स उसमें से ट्रांसफर होके दूसरे के पास जाते हैं, या दूसरे से ट्रांसफर होके आपके पास आते हैं उस कैपिटल एसेट में से, मतलब स्पेशली शेयर्स और सिक्योरिटी में। तो स्टॉक एक्सचेंज के केस में शेयर्स मानता हूं, तो शेयर्स इज द डेट ऑफ सेटलमेंट, और वही डेट पे आपको 900 डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे नहीं, कई बार शुक्रवार को किया आपने, और शुक्र शनिवार इतवार, और वो सारा शुक्रवार पड़ रहा, तो वो आपकी वो ट्रांजेक्शन अगले साल में सेटल होनी है। 31 मार्च के झगड़े बहुत है ना इसमें, तो वो अगर अगले साल में सेटल होनी है तो अगले साल का ही गेन और प्रॉफिट होगा वो, और यह अगले साल में एक्विजिशन मानी जाएगी उसकी आपकी। जब कन्वर्जन करते हैं तो जिस साल में बेचते हैं उस साल का गेन ऑन प्रॉफिट आएगा, और जिस डेट में कन्वर्जन किया उस डेट से लेकर वहां तक का कैपिटल गेन और बाकी बिजनेस इनकम, और ये वाइसा वर्षा भी हो जाता है। वाइसा वर्षा के केस में जिस दिन कन्वर्जन होना है उसी दिन आपका गेन हो जाएगा, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो। अगर स्टॉक इन ट्रेड को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिस दिन आपका इन्वेस्टमेंट बन गया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू जो है, उस दिन का आपको टैक्स कैलकुलेट करके गेन
प्रॉफिट कैलकुलेट करके टैक्स जमा करवाना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लिस्टेड शेयर्स, दूसरे शेयर्स, मैंने इसकी ये चार्ट बनाया है, फिर मैं इस पे आता हूं दोबारा से। इफ हेल्ड लेस देन 12 मंथ, सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, अगर ये 12 महीने या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म है, राइट। और अनलिस्टेड शेयर, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ये 24 महीने या उससे कम है। और यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स और अदर कैपिटल एसेट, ये है तो ये 36 महीने। तीन कैटेगरी बन गई। अब पहले दो थी, ये 2-3 साल पहले 24 महीने का, 4 महीने साल से पहले ये 24 महीने का कॉन्सेप्ट और बीच में आ गया। अब मैं दोबारा वहीं पर चलता हूं। अब यहाँ पर बड़ा गेम है, यहाँ पर टैक्स प्लानिंग बहुत है, जो मर्जर्स, डीमर्जर्स, एक्विजिशन ये करते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी हमारे को यूज करनी है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। खाली वही नहीं, प्रोवाइडर इन केस ऑफ ए सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी सिक्योरिटी है जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश्ड अंडर यूनिट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शैल हैव द इफेक्ट, वहां 12 महीने लग जाएंगे। और provided further that in the case of the shares of not being a recognized token or unit of mutual fund transferred during the period, ये इस पीरियड के लिए है, वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो आपको अपनी, जब आप स्ट्रक्चरिंग करते हैं या कोई शेयर्स इश्यू करते हैं और उसका पीरियड बाद में जाके अनलॉक्ड होना होता है या लिस्ट होना होता है, कब लिस्ट होना है, जिस दिन लिस्ट हो गया वो इररेलेवेंट हो जाएगी, कल पहले लिस्ट था नहीं था। तो आपको उससे वो सारी कैलकुलेशन उस हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसके हिसाब से अपनी टैक्स की आर्बिट्रेज करते हैं। इन केस में प्रीवियस ओनर जो है उसकी जो होल्डिंग पीरियड है वो काउंट होगा टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। In the case of cap being a shares or shares become the property of shall be amalgamation के केस में जो पुराना रखा हुआ amalgamated कंपनी का वही काउंट होगा। राइट रिनाउंसिएशन में भी मैंने अभी बताया, यहाँ पर आ ही गया वो। सच फाइनेंशियल एसेट मतलब जो ओरिजिनल जिसके ऊपर राइट मिला है उसके से ही वो पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन आएगी उसकी। तो ये डिफरेंट एसेट क्लास हैं जहां जहां आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का, जहां प्रीवियस ओनर का, जैसे विल के केस में है, गिफ्ट के केस में है, इनहेरिटेंस के केस में है, बहुत सारे केसेस में आपको वो बेनिफिट मिल जाएंगे। इन द केस ऑफ GDRs के केस में द पीरियड शैल बी डेट ऑन विच ए रिक्वेस्ट फॉर रिडेम्पशन वाज मेड। जिस दिन रिडेम्पशन किया है ना उस दिन से फिर नया पीरियड चालू होगा आपको इसमें GDR में, कि अगर इक्विटी में जो कन्वर्ट करना है आपको। ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बीच बीच में ले सकते हैं क्या या बाद में लेने हैं, कैसे करते हैं? आप बता दीजिए सर, मैं क्वेश्चन ले लेंगे। एक सुरेंद्र कुमार जी का क्वेश्चन है, इफ एन इंडिविजुअल हैविंग डे ट्रेडिंग एंड आल्सो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, तो कैन ही शो प्रॉफिट ऑफ डे ट्रेडिंग अंडर 44 AD एंड डिलीवरी बेस्ड प्रॉफिट और लॉस अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और मेन सोर्स ऑफ इनकम उसका सैलरी है, तो उसकी दो इनकम आ रही है, एक तो डे ट्रेडिंग से आ रही है और एक डिलीवरी बेस्ड है। सबसे पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा जो सैलरी वाला है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो बिजनेस कर ही नहीं सकता, पहली बात। या बहुत सारे
उसको अलाउ नहीं करते। दूसरी बात, फिर भी वो एंटर कर गया तो उसकी नेचर तो बदल नहीं सकती, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में आप फॉल कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो जो वो स्पेकुलेटिव नेचर की रहेगी वो, राइट। और जो बिजनेस इनकम जो दूसरी वाली है, दूसरी वाली क्या बताई आपने? एक तो ट्रेडिंग है और एक डिलीवरी बेस्ड है। डिलीवरी बेस्ड है, अगर उसको भी आप उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट मानते हैं या बिजनेस मानते हैं। दोनों को 44 एडी में आप ले सकते हैं, परंतु दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अगर हाँ जी, तो ज्वाइंट, हाँ, क्योंकि अगर उसमें लॉस है तो फिर 44 एडी नहीं लगेगा ना एक केस में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 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 हाँ। फॉरवर्ड होगा। तो कोई नहीं, आपसे बाद में बात कर लेंगे जी अलग से। हाँ जी। या लास्ट में हम लोग जो है ना थोड़ी देर के लिए माइक ऑन करवा देंगे, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेंगे थोड़ी लास्ट में 10-15 मिनट का ना इंटरेक्टिव को रख देंगे लास्ट में। मैं चलूं, कैरी ऑन करूं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कोई? एक सर और क्वेश्चन है गुरप्रीत सिंह जी का। गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि वी आर गिवन 2 टाइप्स ऑफ नेट स्टेटमेंट्स इन समरी बाय क्लाइंट्स, एक तो कैश की है और एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस की है, तो व्हाट शुड बी कंसिडर्ड इन टर्नओवर? मैंने आपको बताया दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। टर्नओवर, अगर आप दोनों को बिजनेस मान रहे हैं और डिलीवरी बेस्ड काम है, तो डिलीवरी में जो सेल साइड है वो आपकी एक तो टर्नओवर हो गई, और जो फ्यूचर के अंदर है वो हर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट नोट के हिसाब से वो आप समरी मांगेंगे, ब्रोकर से समरी दे देगा वो आपको डिटेल, और वो डिटेल समरी के हिसाब से में उसको करके उसका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों को पॉजिटिव मान के आपको उसकी टर्नओवर, खाली ये टर्नओवर जो डिसाइड करनी है कि टैक्स ऑडिट होना है या नहीं होना, उसके लिए कर दी है बस, और कोई इसका रेलिवेंस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। वो नेटिंग के हिसाब से जाएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। जो आहूजा साहब बोल रहे हैं जी। उसमें तो नेट चमका जी करना ही करना पड़ेगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। हाँ जी, बताइए। पूछिए सर, आप क्वेश्चन पूछिए। जी एस आहूजा जी, आप सर अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ जी आहूजा जी, बताइए। सर मेरा नाम कुशल गुप्ता है, मैं पूछ सकता हूँ पहले? हाँ जी, हाँ पूछ लीजिए। पूछिए, आप पूछिए, एक ही बात है, पूछिए पूछिए। ओके। सर मेरा सवाल ये था कि मेरे पास ओपनिंग में होल्डिंग पड़ी हुई है किसी एक पर्टिकुलर शेयर की। ओपनिंग में होल्डिंग पड़ी हुई है किसी जी पर्टिकुलर डे पे मैंने उस होल्डिंग में से शेयर बेचा और सेम डे पे ही खरीद लिया। ये मेरा एक्चुअल केस है क्लाइंट का। हाँ, तो फिर जो ब्रोकर है वो उसको एज अ जॉबिंग ट्रीट करता है, बिल्कुल लेकिन मैं उसको फीफो में से माइनस करता हूँ। तो ये अप्रोच ठीक है? ये आपके ऊपर है। देखिए, फीफो में से माइनस करते हैं तो वो आपसे मांग सकता है असेसिंग ऑफिसर, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर के पास जैसे ही वो 10 बीडी में जो शो करेगा ना, वो डेली जो भी जी में आपकी सेल शो करेगा, वो डिलीवरी वाली नहीं करेगा। जी जी। तो उससे मेजर प्रॉब्लम मिसमैच यही है होगा। सर कि मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो जॉबिंग पे एसिडिटी होता है। डेली जॉबिंग मान लो, अगर मेजर अमाउंट है तो केस लड़ो। वो मेजर अमाउंट है सर, तो मैं मतलब बेसिकली मुझे जॉबिंग में दिखाना हाँ, तो चाहिए। कर सकते हो आप। तो आप 43 ओके। आएंगे ना 5 में, तो 1 में देखेंगे हाँ तो जी, वहां कवर हो जाएगी आपकी ट्रांजेक्शन। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी आपको प्रॉपर। हाँ जी, लिस्टेड होते हैं क्या, उसमें कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? 10% 20% का ऑप्शन हो सकता है? हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। डेट फंड जो होते हैं हाँ, उसमें वो लिस्टेड होते हैं क्या? वो मेरा listed- सवाल उस पे कैपिटल गेन के ऊपर है। 10% या 20% का ऑप्शन यूज कर सकते हैं उसमें? नहीं, डेट फंड के लिए तो एक ही ऑप्शन है, वो इक्विटी तो माना ही नहीं जाता। डेट फंड है, वो 36 महीने का उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है, और उस पर टैक्सेशन अदर देन इक्विटी शेयर है वो लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
डेट फंड लिस्टेड नहीं होते। नहीं, वो उसमें उसके ऊपर नहीं आता वो। ओके। अरुण जी मेरे हिसाब से ना वो क्या होता है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानते हैं। सीएस वाले को अलग कॉलम में दिखाते हैं, इसको अलग में दिखाते हैं। नहीं, उसमें तो सीएस वाले में पीरियड कम है, इसमें ज्यादा है जो है अपने जो डेट फंड आप बता रहे हो। वो डेट फंड जो होते हैं 36 महीने वाले में कवर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। तो प्लीज कंटिन्यू करिए सर आप। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बाकी क्वेश्चंस बाद में पूछ लेंगे। 36 महीने में आ गई। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ मनीष जी पूछिए। ये जो मार्क टू मार्केट ये जो डेली डिफरेंसेस होते हैं, तो ब्रोकर हमारे अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करता है अकॉर्डिंग टू द लॉस प्रॉफिट जो उस दिन का होता है। हम लोग हमेशा इसी चीज को लेकर के वो इंस्टीट्यूट का भी गाइडेंस नोट पढ़ा, सीबीटी का भी सर्कुलर पढ़ा, सब चीजें पढ़ते हैं, उसमें फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंसेस को नेट करते हैं। तो ये जो मार्क टू मार्केट डेली के प्रॉफिट लॉसेस है, गाइडेंस नोट मेरे सामने है, उसमें ये लिखा मार्क टू मार्केट का अनफेवरेबल अनफेवरेबल, उसने कहा वो लिखते नहीं ना, वो लिखते नहीं ना इसके अंदर में। ईच कॉन्ट्रैक्ट वाइज लिखा है सर उसमें। ब्रोकर से अगर मेरा दो चले रिलायंस में, सुनिए ना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं सुन लिया मैंने, एक मिनट मेरी सुन लीजिए पहले। नहीं अरे वो अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस का ले रखा है और एक टिस्को का ले रखा है और 5 दिन तक वो ओपन रहते हैं, तो ब्रोकर तो गेन और प्रॉफिट मार्क टू मार्क में हर रोज देता रहेगा आपको। सर देखो हम लोग एंट्री करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस की, वो हम डेली के मार्क टू मार्केट की भी डेबिट क्रेडिट की एंट्री करते रहते हैं हम लोग। वो जो ऐसे ब्रोकर एंट्री करता है, जैसे ब्रोकर एंट्री करता है, ब्रोकर अपने आपसे पैसा लेने देने के लिए करता है। सर सुन तो लो ना मेरी, उससे कोई रेलेवेंट नहीं है। अरे सर मेरी बात तो सुन लो, मेरा क्वेश्चन नहीं पूरा होने दीजिए। बोलिए सर बोलिए। अच्छा मैं सुन रहा हूँ आराम से। हाँ, एक सेकंड रुकिए ना सही। हम लोग बिल्कुल वैसी एंट्री करते हैं जैसे फाइनेंशियल डिटेल लेजर आता है, उसमें भी वो मार्जिन की एंट्री करता रहता है, हम भी मार्जिन की एंट्री करते थे, M2M की एंट्री करता है, हम भी M2M की उल्टी एंट्री करते रहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि 44 AB के पर्पस के लिए जो टर्नओवर है वो हमें पर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंस नेट में लेना है, यानी कि जो लास्ट में पूरे साल का असली प्रॉफिट या लॉस है, या M2M को ऐड करना है। दोनों ही लॉस वाले M2M को भी और प्रॉफिट वाले M2M को भी ऐड करना है फॉर द पर्पस ऑफ 44 AB। ये क्लैरिफिकेशन जो 44 AB के लिए, हाँ 44 AB के लिए, 44 AB के लिए पूछ रहे हैं ना? AB सर ऑडिट पर्पस के लिए। हाँ ऑडिट पर्पस के लिए। टर्नओवर क्या कंसीडर करेंगे? ऑडिट पर्पस के लिए हर कॉन्ट्रैक्ट का, अगर सारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 5 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिनमें 3 लाख का लॉस हो गया टोटल मिला के, टोटल आपके टर्नओवर 8 लाख हो गई या 8 करोड़ हो गई। नहीं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 30 दिन का रहता है, ठीक है सर, 30 दिन के अंदर में हर रोज उसके अंदर में 20-25 हजार का प्रॉफिट आता रहा, लॉस आता रहा। अब हम इसको 30 दिन में टोटल करेंगे तो वो बन जाएगा 5 लाख रुपए। M2M फेवरेबल दोनों को अगर टोटल करेंगे तो उसका एक मिनट सर, और डे एंड पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर अप होगा तब उसमें पता चलेगा प्रॉफिट है 5,000, 10,000, 15,000 जो भी उसके अंदर प्रॉफिट है एक लॉट के हिसाब से हम सोचते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 44 AB के लिए लास्ट वाला लेना है या ये M2M के टोटल लेने हैं? लास्ट वाला लेना है, वही मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी एक्चुअल गेन और लॉस है। बट सर एक चीज इसके अंदर में इसमें एक डिफरेंट व्यू ये है कि जो MTM है वो बेसिकली या तो पैसा वो या तो डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, ठीक है ना? तो यानी कि वो पैसा या तो देना है, इट इज क्लेमेबल बाय द ब्रोकर इन केस ऑफ ए लॉस, और अगर प्रॉफिट है तो मैं उससे पैसा ले सकता हूं। तो व्हाई इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए टर्नओवर व्हेन इट इज ए क्लेमेबल अमाउंट? फिर को पता लगा मेरे 5-6 ही कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने 40-50 लाख की टोटल टर्नओवर नहीं की और वो खड़े हुए हैं पूरे साल भर में, और हर रोज उसमें गेन प्रॉफिट होता चला जा रहा है और वो जाके टर्नओवर बन गई।
आपके हिसाब से तो फिर आप अगर आप गाइडेंस हम सर उसको इसीलिए उसको हम लोग एमटीएम को टर्नओवर कंसीडर करके और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो फेवरेबल नॉन फेवरेबल के नेट के डिफरेंस से ही बनाते हैं। नहीं, गलत है बस वो। ये भी के पर्पस के लिए इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में मार्क टू मार्क कहीं भी नहीं लिखा, उसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली नहीं लिखा है, यही कंफ्यूजन है सारी। इंस्टीट्यूट के गाइडेंस लेकिन नोट बहुत में सब है कॉन्ट्रैक्ट वाइज गेन और प्रॉफिट। पैरा नंबर 514 आप पढ़ लें टर्नओवर की, जहां मैंने पढ़ा था सर। हाँ, तो उसमें कहीं भी मार्क टू मार्क की बात ही नहीं करता वो। उसमें लिखता नहीं है, उसमें फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंसेस क्या है ये भी नहीं एक्सप्लेन करता, उसमें फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंस क्या है ये भी नहीं एक्सप्लेन करता। फेवरेबल अनफेवरेबल तो वही हो गया ना सर, उसको तो क्या एक्सप्लेन करना है। अगर सर वो M2M भी तो मेरा हमारा जो और भी एक्सपर्ट्स का व्यू है वो ये कहते हैं कि भाई M2M जो डे एंड पे है वो भी तो फेवरेबल या अनफेवरेबल डिफरेंस, क्योंकि इट इज अ क्लेमेबल और पेबल अमाउंट। सर वो आप उसको कंप्लीट पढ़ेंगे जब एक्चुअली कंक्लूडेड लिखा है वहां पर। एक्चुअली मैं पढ़ एक मिनट देना सर वो एक्चुअली कंक्लूडेड, मैं एक बार देख लेता हूँ वाला गाइडेंस नोट। मैं अभी 1 मिनट पढ़ा देता हूँ आपको। एज ए टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट, टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट अब मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे रखा है। आपके पास बाहर है, मैं अभी देखता हूँ सर इनकम टैक्स। क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, नहीं तो फिर तो बहुत काम करना पड़ जाएगा आपको। सर यही तो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है इसी चीज की। एमटीएम जो होता है वो भी बेसिकली हमारा व्यू है कि वो अगर मान लीजिए मैं पूरा मार्जिन दे करके चल रहा हूँ, पूरा मार्जिन दे करके चल रहा हूँ, 1 रुपया भी उसके बाद फालतू नहीं है मेरा, तो मेरे से पैसे मांगेगा ही मांगेगा डेट पे, और अगर उसका बनता है तो देना ही पड़ेगा। 2 मिनट सुन लीजिए सर जी, मेरे पास आ गया है। हाँ जी। Derivative future options, such transactions are completed without the delivery of shares as security. There are also squared up of differences. The contract note are issued for the full value of asset purchased or sold, but entries in the books of accounts are made only for the differences. Right? That transaction may be squared up and सुन लीजिए sir. That transaction may be any time on or before the shrinking date. The buyer of the option pays the premium. The turnover in such type of transaction is to be determined as follows. The total of the favorable and unfavorable difference shall be taken as turnover. The premium received on sale of the option is also to be included in the turnover. In respect of enter the difference thereon should be, बस क्लियर है, बस और कुछ लिखा ही नहीं इसमें, मार्क टू मार्क की कहीं बात ही नहीं कर रहा, जहां एक्चुअल स्क्वायर्ड ऑफ लिखा है वही लिखा है। सर एक बार ना मेरे को गाइडेंस नोट बताना, मैं अपना ना ऊपर वाला पैरा देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड अदरवाइज देन एंड स्क्वायर अप बाय पेइंग आउट द डिफरेंस। सेटल्ड कब होगा और पेइंग आउट ऑफ डिफरेंस कब होगा? जब वो स्क्वायर अप हो जाएगा और तभी उसका एक्चुअल प्रॉफिट एंड गेन्स आएगा सर, बाकी तो सब नॉमिनल है। सर ये गाइडेंस नोट हमारा टैक्स ऑडिट के उसमें है ना, मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूँ, वो भी काफी दिन हो गया पढ़े हुए। कंफ्यूजन नहीं है मेरे को, 1% भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारे मेरे को है सर, मेरे को कंफ्यूजन है, तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप आराम से पढ़ो 5.14। मैं आप दूसरे की क्वेरी सॉल्व करो, मैं एक बार जरा वो पैराग्राफ टैक्स ऑडिट गाइडेंस नोट में पढ़ लेता हूँ। मैं तो ये भी भूल गया था कि वो लिखा कहाँ हुआ है, अब ध्यान आया कि टैक्स ऑडिट गाइडेंस नोट पे लिखा हुआ है। आप दूसरे की क्वेरी सॉल्व करो, तब तक आई कम बैक टू यू। हाँ पूछो सर वरुण। हाँ जी पूछिए। हाँ पूछिए मुझे। अरे जो इसकी वैल्यूएशन की बात कर रहे थे, आपने कहा फीफो स्टॉक वैल्यूएशन बिजनेस के केस में, ठीक है। तो जो अभी वो आता कि बास्केट मेथड से आपको इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज देखने की बजाय वैल्यूएशन की बात कर रहे थे उसमें। नहीं, वो इंटरचेंजेबली स्टॉक नहीं है ना सर। अगर कोई इंटरचेंजेबली स्टॉक है तो आप अलग आप टोटल ले सकते हो। अगर इंटरचेंजेबली स्टॉक नहीं है तो आपको स्पेसिफिक हर स्क्रिप्ट का अलग से लेना पड़ेगा। बास्केट का क्या मतलब हुआ सर?
बास्केट मेथड का क्या मतलब हुआ है? मार्केट मेथड का, बास्केट 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 मेथड का मतलब ये हुआ कि भाई एक टाइप की, एक नेचर की, परंतु मेरे को नहीं लगता है कि इसमें बास्केट मेथड अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का व्यू है कि इसमें बास्केट मेथड अप्लाई करना चाहिए। मेरा मानना है कि इसमें बास्केट मेथड अगर कर भी ले तो हो सकता है कुछ प्लस आ जाए, तो अदरवाइज भी आप AS2, आपके पास तो ऑप्शंस है ना अब आपके पास, क्योंकि AS2 तो लग नहीं रहा, तो बास्केट मेथड और बास्केट मेथड तो चलता नहीं है। आपको कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, उसकी NAV डिटरमाइन करनी है। प्लीज अप्रिशिएट। AS2 तो सिक्योरिटी पे, शेयर्स पे लगेगा ही नहीं। अब आपके ऊपर है, आप खाली जो लॉसेज है उसको प्रोवाइड फॉर करना चाहते हैं या उसको रियल वैल्यू पे शो करना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि रियल वैल्यू पे शो कर दें। अब चाहे मार्केट वैल्यू लगा के कर लें जो आपने लिया, क्योंकि S2 एप्लीकेबल ही नहीं, तो चाहे मार्केट वैल्यू मार्केट बना दें उसकी, और आपके पास सपोज आप गोल्ड में भी कर रहे हैं और शेयर्स में भी कर रहे हैं, तो शेयर्स की एक बास्केट बना दी और गोल्ड की अलग बना दी। शेयर्स की बास्केट बना दी, फिर उसमें माने मेरे 10 शेयर हैं, तो मेरे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेरे बास्केट के हिसाब से टोटल को ही देखना पड़ेगा ना, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज देखेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। तो देखो कहीं वो इंटरचेंजेबिलिटी की भी बात करता है तो बास्केट फिर बनती नहीं है ना, समझो। अगर मैं रिलायंस की भी बात करता हूँ, और ठीक है आपकी बात कर सकते हो, अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है उस पर, दोनों व्यू है, कर सकते अच्छा। हैं आपकी, हाँ मैं आपकी बात से भी एग्री कर रहा हूँ, परंतु मैं कई बार रिलायंस फर्क पड़ जाता है। रिलायंस को मैं टाटा से एक्सचेंज नहीं कर सकता। बास्केट वहां बनती है जो सेम नेचर ऑफ गुड्स है। इक्विटी शेयर्स तो सर कोई भी हो, कर लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई केस आएगा तो देख लेंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं प्लीज, अभी कंटिन्यू करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है सर। सर प्लीज कंटिन्यू, बाद में ले लेंगे लेक्चर, ये क्वेश्चन। हाँ प्लीज, हाँ जी हाँ जी। अभी क्वेश्चन बाद में पूछ लीजिएगा प्लीज, अभी थोड़ा कंटिन्यू करने दीजिए सेशन, 10-15 मिनट बाद दोबारा क्वेश्चन पूछ लेंगे प्लीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब तो 1 लाख से ऊपर 10% पे टैक्सेबल हो गया है। हेलो, और उसमें ग्रांड फादरिंग रूल आया हुआ है, ये कहाँ गया, ये ग्रांड फादरिंग रूल आया हुआ है ये, जिसके हिसाब से 31 जनवरी की जो डेट है, उस डेट पे अगर वैल्यू आपकी जो है या आपकी एक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज हायर, आपके ऊपर है, जो भी हायर हो वो आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हैं। और 1 अप्रैल 2018 के बाद जब भी उस शेयर को बेचते हैं तो उस हिसाब से गेन और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। किन शेयरों का? जो आपने 31 जनवरी तक एक्वायर कर लिए हैं, उसके बाद एक्वायर करे हैं, तो उस पे ये ग्रांड फादरिंग नहीं लगेगा। प्लीज अप्रिशिएट। ठीक है जी। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? ये मैंने टेबल बना दिया है, परचेज एंड सेल बिफोर 31 टोटली परचेज बिफोर 31 एंड सेल आफ्टर दिस, बट बिफोर दिस तो एग्जाम्प्ट है तब भी, क्योंकि उसी साल में पड़ रहा है, 17-18 में टोटल एग्जाम था। परचेज बिफोर 31, सेल ऑन और आफ्टर ये तो वाला लग जाएगा और ग्रांड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। परचेज आफ्टर 31 तो पूरा LTCG जो लग रहा है 1 लाख के एग्जम्पशन के बाद वो लग जाएगा। तो किस किस चीज में 112 में ये है कि भाई पहले कैपिटल गेन का टैक्स कैलकुलेट कर लें, और कैपिटल गेन के अलावा जो इनकम आ रही है फिर उसका कैलकुलेट कर लें, और दोनों को जोड़ लें तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि आपको ये NRI के केस में जब आप बेचते हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि आपको शेयर जब परचेज किए हैं
इंडियन रुपी में, उसको जिस दिन परचेज किया उसको पहले कन्वर्ट करना है आपको। सपोज आपने 5 लाख रुपए के रिलायंस खरीदे, आपने 100 रुपए का रिलायंस खरीदा, जो डॉलर था उस समय 50 रुपए का, तो आपने 100 रुपए का रिलायंस खरीदा आपने 1000 शेयर, राइट। तो कितने डॉलर हो गए, 2 के हिसाब से $2000, या कितने रुपए हो गए, 1 लाख रुपए हो गए ये। और जब बेचा तो आपने बेचा 2.25 लाख का, तो गेन कितना आया, 1.25 लाख रुपया। लेकिन इसको कन्वर्ट करना है, 75 रुपए हो गया डॉलर, तो 75 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, $3000। ठीक है जी, 3000 माइनस 2000 कितना हो गया, $1000 का गेन आ गया। 1000 इंटू 75, तो गेन कितना रह गया, 75,000 रुपया। आप समझ रहे हैं। नॉन रेजिडेंट के केस में आपको गेन कैलकुलेट करते हुए जिस करेंसी में परचेज के समय करा है उसका ध्यान रखना है, जिससे कि ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया कम हो गया, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे के समय, बहुत सारे एनआरआई के बीच में जब ट्रांजेक्शन होती है उस समय मैं देखता हूँ बहुत सारे 15 CACB में इस चीज का टेक केयर नहीं होता कई जगह, और गलत टैक्स कैलकुलेट करके, गलत कैपिटल गेन कैलकुलेट करके गलत टैक्स कैलकुलेट होके चला जाता है। ये सेक्शन 48 आप पढ़ लें, इसके लिए मैंने इसमें डिस्क्राइब किया। जो मैंने बताया एग्जैक्ट वही मेथोडोलॉजी पे रूल 115A है, वो भी मैंने यहाँ पर आगे किया हुआ है। और ये 112A है जो ये कहता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म में भी है, लॉन्ग टर्म में भी एग्जेम्प्टेड इनकम तक का है तो आपको छूट मिल जाएगी। नॉन रेजिडेंट के केस में वो भी नहीं मिलेगी, लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में जो टैक्सेबिलिटी बननी है वो बननी है, राइट। तो इसमें अब एक और चीज मजे वाली आ रही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सेंटर्स बने हुए हैं गुजरात में, गांधीनगर में, अगर वहां कोई ट्रांजेक्शन करके वहां पर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आनी है, होनी है, और उसमें गेन और प्रॉफिट आना है, तो उसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बनेगा वो टैक्स प्रीव्यू से बाहर हो जाएगा। तो वो चीज का भी बेनिफिट, अगर बड़े लोग हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है एक बार समझ के आप अपने क्लाइंटों को गाइड कर सकते हैं कि वहां पर आप ऐसे सेटअप करें, ये प्रोसीजर रहेगा। अगर गेन या लॉस आता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो आप टैक्स प्रीव्यू से टोटली ऐसे बाहर हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा वो आपको तरीका है वो भी। यहां मैंने लिखा था कंडीशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंसीडर फॉर सच ट्रांसफर इज रिसीव्ड और रिसीवेबल इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब तो 115 जेबी खत्म हो गया। 115 जेबी के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हम कैलकुलेट नहीं करते, और जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन है ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लिए हम उसको कंसीडर करते हैं, और ना ही हम वो रिबेट के लिए उसको कंसीडर करते हैं। प्लीज क्लियर, ये गलतियां भी हो जाती हैं, हो सकती है, होती हूं। तो ये एक प्रैक्टिकल चीजें हैं छोटी छोटी जो मिस्टेक प्रोन है, जो प्लीज आप जब आप अपनी कैलकुलेशंस करें, कंप्यूटेशंस करें टैक्सेबिलिटी की अपने क्लाइंटों की, तो उनका ध्यान रखें कि वो बेनिफिट, वो चीजें मिस ना हो जाए। ये ग्रैंडफादरिंग मैंने आपको पूरा दिया हुआ है। 48 यहाँ पर आ गया है पूरा जो मैंने अभी आपको बताया है। ये इसका रूल आ गया पूरा।
ये 15 CA का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आजकल कई है ना बैलेंस शीटों में, जब आप एक्विजिशंस वगैरह में या सब्सिडरी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने में जाते हैं, तो अब 56 है जो आपको टैक्स ऑडिट में भी रिपोर्ट करना है, या 56(7A) 7B है, जहां आपको लिस्टेड अनलिस्टेड शेयरों का भी एक्विजिशन है, तो वहां पर भी इश्यूज है। तो उन सब चीजों को भी ध्यान रखें, कहीं आपकी टैक्सेबिलिटी और रिपोर्टिंग आ रही है क्या, किसी क्लाइंट ने आपके वो अक्वायर किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, या यहाँ पर ये 50 CA में वो फॉल कर रहे हैं क्या, कहीं कोटेड शेयर है तो और उससे ज्यादा आपने उसके पैसे दे दिए। मैंने ब्लॉक डील की, मैंने कहा भाई मैं 50 रुपए का मार्केट रेट है, लेकिन मैंने पैसे ज्यादा दे दिए। तो वो सारी चीजें भी थोड़ा सा आप ध्यान करें कि वो फेयर वाली मार्केट वैल्यू से अगर ज्यादा पैसे जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, और उसकी टैक्सेबिलिटी क्या आने वाली है और किसके हाथ में आने वाली है। बोनस के शेयर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होनी है, और राइट एंटरटेनमेंट के केस में भी नील होनी है, लेकिन राइट जब आता है उसकी कॉस्ट है, राइट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी मैंने कर दिया है, ये भी मैंने कर दिया, कैरी फॉरवर्ड भी। ये बहुत सारी ट्रांजेक्शन है जो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर है। अब कोई शेयर मैंने लोन पे दे दिया, बहुत सारे लोग आजकल प्लान कर देते हैं शेयर बैंकों को लोन पे दे देते हैं, लोन पे नहीं दिए प्रैक्टिकली प्लान कर दिए, राइट। या फिर मैं लोन पे दे देता हूँ, मैंने राकेश जी ने कहा मेरे को 1000 शेयर दे दीजिए, राकेश जी से मैंने कहा मेरे को 1000 शेयर दे दीजिए, वो प्रैक्टिकली ट्रांसफर तो नहीं है। और सेबी की गाइड एग्जैक्टली क्या कहती है, किस तरह से होना चाहिए, वो मोड ऑफ ऑपरेंडी मैंने देखा नहीं, क्या उसका कोई फॉर्म है क्या, तो वो फॉलो कर लेना चाहिए हमारे को, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, राइट। और अगर मेरे को गुप्ता जी ने कोई शेयर खरीदे थे 3 साल पहले 1000 रिलायंस, और मेरे को दे दिए, मैंने कहा यार मेरे को दे दो, और मैंने उसे बेच दिया, राइट, तो मेरे को भी अभी टैक्स नहीं लगा, गुप्ता जी को भी टैक्स नहीं लगा, और शेयर भी बिक गया और पैसा भी आ गया, राइट, क्योंकि मेरे पास तो कोई शेयर नहीं थे, मेरे को तो ये शेयर वापस देते हैं, तो मेरे को कब टैक्स लगेगा। तो मैंने क्या एंटर किया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ है गुप्ता जी के साथ कि मैं आपको एज इट इज शेयर वापस दे दूंगा, तो जब भी मैं वो शेयर खरीद के वापस दूंगा, और वो जब मेरा प्रॉफिट सर्टन या लॉस सर्टन हो जाएगा, उस दिन मेरे लॉस और प्रॉफिट की कैलकुलेशन बेस तो मैंने दी, तो शॉर्ट टर्म ही होना है जो भी होना है, राइट, लॉन्ग टर्म नहीं होना। लेकिन गुप्ता जी को अगर मैंने वापस दे दिया, और गुप्ता जी ने हमें एक डीड एग्जीक्यूट कर ली जिसमें ये है कि ये शेयर खाली लोन पे मुझे मिले हैं, तो जो उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग है 3 साल का, वो ब्रेक नहीं होगा, राइट, परंतु उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी मुझे। और उनको अगर जब भी वो बेचेंगे, अब उसमें ये भी हो सकता है वो मेरे को ही कह दें कि बेच दो, तो एसटीटी पेड है, और मैंने उनके बैंक जैसे बेच देते हैं बहुत लोगों के शेयर, राइट, ऑन देयर बिहाफ, तो एसटीटी भी पेड है, तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट तो मिल ही जाएगा ना। मेरा तो व्यू है कि उसमें लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मैंने गुप्ता जी के बिहाफ में, गुप्ता जी ने कहा मेरे को वापिस मत दो यार, ये तुम बेच ही दो, और मेरे को पैसा वापस कर देना जिस भी रेट में मिले, राइट। या बैंक ने, मैं कह रहा हूँ गुप्ता जी का एग्जांपल छोड़ देते हैं, बैंकों के पास बहुत सारे शेयर पड़े रहते हैं, और वो क्लाइंट अगर पैसा नहीं चुकाता प्लेज में और वो बेच देते हैं, तो मेरे हिसाब से उनकी लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं लूज होगा। प्लीज टेक केयर। और 47, 48, 49 जरूर पढ़ने चाहिए। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ट्रांसफर नहीं है, जिसमें इंडेक्सेशन है, जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के इश्यूज हैं, जिसमें आपको ये कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन है, तो ये आपको बहुत सारी चीजें मदद करेंगी इन सब सेक्शंस की। अब एम्प्लॉय ईसोप्स है,
उसकी टैक्सेशन में देखता हूँ बहुत सारे जगह हम कई कंपनियों का ईसॉप्स की काम करते हैं, उनकी टैक्सेशन ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में जहां भी उनके एम्प्लॉय हैं, दोनों तीनों तरह से ईसॉप्स मिलते हैं। इंडियन कंपनी के ईसॉप्स इंडियन रेजिडेंट को भी मिलते हैं, फॉरेन एनआरआईज को भी मिलते हैं जो इंडियन सिटीजन्स हैं, और फॉरेन सिटीजन्स को भी मिलते हैं, राइट। दूसरा केस है इंडियन सब्सिडरी है जो बाहर है, उसको इंडियन कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। उसमें भी ये होता है कि यहाँ से जो लोग गए हुए हैं उनको भी मिलते हैं, या फॉरेन कंपनी के कुछ लोग इंडिया में जो इंडियन रेजिडेंट काम कर रहे हैं वो भी लोग हैं, और दोनों जगह फॉरेन लोग भी हैं, राइट। तीसरा केस ये होता है कि फॉरेन कंपनी में ईसॉप्स मिलते हैं लोगों को जो वहां लिस्टेड है। मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं, तो जो फॉरेन कंट्री के ईसॉप्स हैं वो वही मिल सकते हैं जो कैशलेस ट्रांजेक्शन होगी, और वो जो इमीडिएटली सेल होगा, प्लीज उसके अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट तभी होंगे वो ईसॉप जिस दिन आपको बेचना होगा। आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी, आप कभी उसको पैसे नहीं दोगे, लेकिन जब भी पैसे दोगे आपको पैसे नहीं देने, कैशलेस है वो। जब भी आप बेचोगे उसमें से उसकी कॉस्ट डिडक्ट होके कंपनी को चली जाएगी, और बाकी आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन भी फिर वैसे ही होनी है, फॉरेन एक्सचेंज को वैसे ही कन्वर्ट वगैरह करना है, और फिर कैपिटल गेन उसका प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। इसी तरह फॉरेन नेशनल के केस में भी और एनआरआईज के केस में भी जो इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं उनमें सब ये कैलकुलेशन करनी है। उसमें ध्यान रखना है, उसमें दो तीन, एक तो वेस्टिंग पीरियड होता है, एक एक्सरसाइज डेट होती है जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हैं, एक होती है अलॉटमेंट डेट जिस दिन आपको अलॉट करती है कंपनी, और एक होती है जिस दिन आप बेचते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज, आपको जो फेयर मार्केट वैल्यू और उसका जो डिफरेंस है आपकी परक्यूजिट का पार्ट बन जाता है। व्हेन ऑन द डेट इन विच फाइनेंशियल ईयर वो डेट पड़ती है, उस डेट में आपकी परक्यूजिट बन जाती है, और उसका डिफरेंस फेयर मार्केट वैल्यू का, और जो आपको वो अमाउंट आप जो देने के लिए राजी होते हैं उसको कंपनी को, उसका जिस दिन आप देते हैं उस दिन वो हो गया, और जिस दिन आपको अलॉट हुए उस दिन से आपकी होल्डिंग पीरियड चालू हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बेनिफिट उस दिन से लगता है आपको। तो जब भी आप 15 सीबी इशू करें तो ये सब कैलकुलेशन का बड़े ध्यान से ध्यान रखें, कहीं गलती ना हो जाए, और उसमें रेजिडेंट है या नहीं है, या पी है या नहीं है, वो सब मेरे ख्याल आप लोग सब जानते ही हैं। वो कहाँ क्या कौन सा ट्रीटी में जा रहे हैं तो कौन सा टैक्स लगना है, और ट्रीटी में नहीं जा रहे तो आपको सेस भी लगाना है, और टीडीएस में 195 में वो सारी चीजों का भी आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है कि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि वो अमाउंट बड़े मेजर होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीजें मेरे कवर कर ली है। कुछ अगर अब आपके क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर। जी जी हेलो सर, आप क्वेश्चन ले लेते हैं, मैक्सिमम पार्ट में कवर कर दिया है। कोई चीज अगर बाई बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं है हेलो हेलो। हेलो, हाँ वरुण जी बोलिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कमर्शियल पेपर्स होते हैं ना बॉन्ड्स कंपनीज के, वो जैसे एक्स कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट ऐसे मिलते हैं। सब वो 3-3 महीने पे इंटरेस्ट उसकी पेमेंट होती है। अब मैंने आज बॉन्ड खरीदा और 1 महीने बाद बेच दिया, बीच में मेरे को इंटरेस्ट मिला। तो अब ये जो परचेज सेल हो रही है, मैं रेगुलर कर रहा हूँ इस काम को, इसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। ये 1-to-1 डील होती है। तो इसको मुझे रिफ्लेक्ट करना पीएल में, तो क्या टोटल मुझे परचेज सेल शो करना चाहिए या सिर्फ इंटरेस्ट इनकम दिखा देना चाहिए? इंटरेस्ट आप मतलब ओपन मार्केट से 1-to-1 डील कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। आपका पोर्टफोलियो क्या है? इन्वेस्टमेंट है।
इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट में तो इंटरेस्ट ही आएगा, इसमें कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे आप। बेसिकली देखा जाए तो महीने में कम से कम 10-12 ट्रांजेक्शन ऐसी हो जाती है 5-10 करोड़ रुपए की। एक ट्रांजेक्शन क्या 5 करोड़ से कम नहीं होती। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर आपका सेल परचेज है नहीं, और कोई इंस्ट्रूमेंट भी सेल परचेज के लिए बनानी है, वो तो प्योर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इनकम के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट है वो तो। वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई सेल परचेज उन्होंने कही ही नहीं है कहीं भी। अभी आ रही 31 मार्च को मेरा एक ट्रांजेक्शन मेरा आउटस्टैंडिंग रह गई है। हाँ जी, 31 मार्च को एक ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग रह गई है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट में रह गई आपकी, वो उसको इन्वेस्टमेंट में शो कर देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू सर। एक खेमका जी, हर्ष नारायण जी हेलो। का सवाल है, हाउ टू शो टर्नओवर इन MCX फ्यूचर। MCX फ्यूचर मैंने बताया ना, उसमें भी यही है, उसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्यूचर की वो ट्रांजेक्शन टैक्स ऑडिट के लिए लेनी है, और एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लेना है। वैसे अगर उसमें डिलीवरी बेस है तो डिलीवरी बेस अलग लेनी है, कुछ ट्रेड में डिलीवरी बेस भी है। सर मेरे क्वेश्चन अपना डिटेल्स भी जरा शो कर दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए, ताकि कोई मेंबर आपसे कांटेक्ट करना चाहे व्हाट्सएप पे या मेल पे तो कांटेक्ट कर सके। सर आप कर दीजिए, मेरा नंबर है 9810693421, यही व्हाट्सएप फोन नंबर भी है। बिल्कुल ठीक। और मेरी स्लाइड में मेरे ख्याल कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही। हाँ, ईमेल नहीं दी हुई मेरी, ईमेल मेरा पूरा नाम लिख दें, यतीन्द्रनाथ खेमका @yahoo.com। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मोबाइल नंबर तो है सर इसमें। ठीक है सर। हाँ जी। सर मेरा एक हेलो, क्वेश्चन था, PPT कब अकाउंटिंग या मिलेगी? टैक्सेशन आज से मिल रिलेटेड नहीं जाएगी है। हमें ये PPT? खेमका जी, हमें ये PPT आज ही मिल जाएगी? अभी दे देता हूँ सर 10 मिनट में। ओके ओके ओके। So भारद्वाज जी, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए। मैं ख्याल देयर आर नो मोर क्वेश्चंस एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल सेशन। तो भारद्वाज जी, आप हेलो। कंक्लूड कर दीजिए। हमारी एक प्रैक्टिस रही है कि भाई जो भी स्पीकर आते हैं हम उनसे परमिशन लेके वर्चुअल जो भी लेक्चर हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग एक यूट्यूब चैनल बना है स्टडी सर्कल का, उस पे अपलोड करते हैं। तो आई वांट योर स्पेसिफिक परमिशन आपको भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, वी आर हाईली थैंकफुल टू यू फॉर अपॉर्चुनिटी। इट वाज ए वंडरफुल डिस्कशन। और बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कंफ्यूजन भी है, कुछ तो कंफ्यूजन ये है कि लोग अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शन को दिखलाना चाहते हैं या नहीं दिखलाना चाहते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है। क्लाइंट बहुत ज्यादा पैसे देना नहीं चाहते, दूसरा कंफ्यूजन ये है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब वो कोई आदमी आगे कहता है सर और तो कोई काम नहीं है, शेयरों में कुछ काम किया पैसा था दें तो सारी सब समस्याओं का हल हो जाए। हाँ जी 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 जी। चलिए, वो तो कहते हैं जी पहले ही घाटा हो गया हमारे को तो घाटा हो गया। अरे भाई, घाटा तो हो गया, ट्रांजैक्शन तो करोड़ों की कर ली। बिल्कुल। So we shall keep all your suggestions in practice, and we are very thankful to you for your sparing your valuable time for guiding our members. And I am also thankful to all the members for sparing their valuable time for making this event a success. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you all. Thank you, Khemka ji. Thank you, sir. Thank you, Gupta ji. Thank you, Bhardwaj ji. Thank you. Bye bye. Welcome. Bye.